So good afternoon folks, and we're back after a long time, after a gap of 2 weeks, and finally we're back with the cricket match. This is Kashmir Cricket League Jaipur, and we have a different kind of. We have Cap Pune coming into the tournament. They have to play 3 matches to qualify for the semis. They have to win 3 out of 3 matches and they can qualify. And these are just the qualifying games for Cap Pune, and we'll have to wait and watch the toss, which was pretty much important earlier on. Toss falling into the kitty of Cap Jaipur, and their captain straight away deciding to bat first. Out come the 2 openers, Avinash Sharma and Devin the Khatri. Yash Gujar is going to open the attack, and I got my colleague next to me, Mr. Sheikh Nazir. जयपुर तथा कैप पुणे के विरुद्ध इस समय मुकाबला शुरू होने जा रहा है। T20 का ये मुकाबला, और ऐसे में प्रारंभिक छोड़ी कैप जयपुर की ओर से पहुंच चुके हैं अविनाश शर्मा, देवेंद्र खत्री, जो कि इसमें शुरुआती क्षणों में प्रारंभ करेंगे कैप जयपुर की ओर से, और देखना होगा क्या रणनीति और योजना रहेगी। वातावरण की बात करें, अच्छी खासी तेज धूप, तापमान कमाल का, और ऐसे में इन उपस्थितियों में कहना चाहिए शुरुआती क्षण काफी महत्वपूर्ण रहेंगे टीम कैप जयपुर के लिए। Well, of course, and just the beginning of this all important cricket match, and the start will be pretty crucial and key. And after getting a good start, they can really flourish their innings. But we'll have to wait and watch. There is a slip in place. There is a gully back with a point. Sure, it's a cover mid off onto the onside. There is short mid on, short mid wicket, and the failure at fine leg boundary. With this field, first ball coming up, Yash to open the attack. On strike will be Avinash Sharma. And umpire Alim Dar of Valley of Kashmir says, let's play. Educate Hilaldar is officiating alongside Jangir John. The very first ball, that's a good shot down to the back with a point. No run there, but that was a good shot. It was a fuller length delivery, and it was there to be put away. And so does the batsman, but find this backward a point in place. No run, none for none in over number 1. अविनाश शर्मा और देवेंद्र खत्री, जो कि प्रारंभिक जोड़ी है। देवेंद्र खत्री इस समय नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे अविनाश सामना कर रहे हैं। हालांकि प्रारंभ हो चुका है इस मुकाबले का, और ऐसे में एक गेंद खुला है कैप जयपुर का। इस ओवर में अगली बार यश गेंदबाज, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई बहुत ही बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज। अंतिम समय तक देखते रह गए गेंद को, और अंतिम समय में गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। मनोवर, जिस प्रकार का पिच, और ऐसे में शुरुआती क्षणों से नई गेंद से जो गेंदबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं जो लाभ है वो गेंदबाज को मिलेगा अगर शुरुआती क्षणों में सावधानी न बरते बल्लेबाज तो। Of course, and a new ball can swing, and there is a gentle breeze on its way, and that can also assist pacers, and if they manage to hit the right areas. But the ball isn't rising at all, and we have seen first 3 balls, all full length deliveries, and this wicket, it looks quite white wall, benign track, no grass at all. It's a white wall, dry wicket, no cracks whatsoever, full of runs, but you got to get your eyes in and then to offer the shots, and better is to keep wickets intact. And we'll have to wait and watch. Next one from Yash, outside off, and he's looking for that outswing straight away. It's a wide delivery, 1 more run added. It's 1 for none in over number 1, and Cap and we were just talking about that, how the pacer can really deny the batters any freebie, and the way he's bowling is trying to get some assistance out of the track, and is trying to tease and annoy the batters. And look again, and it's again swinging but outwards, but not that much swing, but to some extent we can say it's a good swing, no doubt about that, but no carry, not a perfect carry as far the wicket is concerned, and the bounce isn't perfect, and it's keeping low, and keeping low, then it swings outwards. That's because of that the batter is unable to get right amount of bat behind it, or close to it, and if it rises quite a bit, it can prove really worthy for the pacer. Oh, that's a good line. That is a brilliant line.
On that occasion, it was coming into the right-hander on middle and leg, and that's how you can tease him. Again, that bounce isn't there, and they need little bounce to tease in another batsman. If the ball kisses the blade on that bounce, it can carry to first slip and the wicket keeper, but if it keeps low, it won't carry. So he need to keep that thing also in mind to hit the deck hard, try to hit it hard, so that you get that enough bounce of the deck. Next ball, that's a good delivery, but it's way outside of again a wide ball, and now he has to maintain the discipline with the ball. Yash Gujar, he's operating, he's conceded 2 wide so far. It's 2 for none after 5 balls. It's been disciplined at bowling so far. And he's trying to bowl in that corridor of uncertainty. Ball is swinging and swinging further, but what is the need of an hour is to hit the ball and bring the ball back into the right hander and then nip away of the deck, and ball should tend to leave the right hander. That can create some sort of panic for the batter, but that marks the दो एक के बाद बगैर नुकसान के अविनाश शर्मा और देवेंद्र खत्री की जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि अविनाश ने पहले ओवर का सामना किया, 6 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें, हालांकि अतिरिक्त तो उछाल इस विकेट पे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी शुरुआती क्षण में, हालांकि प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में है, प्रारंभ हुआ है इस मुकाबले का, शुरुआती क्षण है, तो ऐसे में उस लय में अभी तक गेंदबाजी नहीं देखने को मिली है। शुरुआत है, भले ही जैसे ही पावर प्ले, क्षमा कीजिएगा, जैसे ही पावर प्ले आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे देखना होगा दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे, शुरुआती क्षणों में विकेट के मजाज को परखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे। खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान रख सकते हैं, सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं, एक बड़े लक्ष्य तक कैप जयपुर पहुंच सकती है। दूसरे ओवर की शुरुआत आज प्रारंभ यश गुजर ने किया और पारी का दूसरा ओवर लेकर के इस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और निश्चित तौर पे वाइड का इशारा। जहांगीर जॉन जो इस मुकाबले में आज जो ऑफिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ एडवोकेट हिलाल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से दोनों का ताल्लुक है और इस मुकाबले में उन्हें अवसर मिला है अंपायरिंग का, बहुत ही बेहतरीन अंपायर, अच्छा खासा उनके पास अनुभव। अरसलान गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि यश के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा किया था। 3 जयपुर का स्कोर बगैर नुकसान के। ये गेंद इस बार फिर अपनी दिशा और लंबाई में नियंत्रण करना होगा, क्योंकि शुरुआती शुरू में यदि आप ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंदें फेंकते हैं तो एक अतिरिक्त दबाव बनाने की जो कोशिश की जाती है वो अपने आप बल्लेबाज से छटती हुई। टीम कैप जयपुर 4, दूसरे ओवर बगैर नुकसान की। देवेंद्र खत्री सामने, देखना होगा देवेंद्र किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पहली बार इस ओवर में उनको स्ट्राइक का अवसर मिला है और देखना होगा यहाँ पे अंपायर से बातचीत हो रही है और निश्चित तौर पे देखना होगा इन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से यहाँ से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि समझते शायद स्पाइक्स का कोई इशू है, स्पाइक्स उनके जूते में लगे हैं जिससे विकेट में विकेट टूट रहा है और जिसके चलते इस समय कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे दिक्कत हो रही है और अंपायर ने ऐसे उनसे बातचीत की, मंत्रणा की गेंदबाज से। और देखना होगा खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, लेकिन आपको बताता चलूं कि आज टीम कैप जयपुर ने पुणे के विरुद्ध टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। देवेंद्र खत्री और अविनाश शर्मा ये प्रारंभिक जोड़ी और इस समय गेंदबाज अरसलान के पास जो कि इस छोर से कमेंटेटर मैच से गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ा मुकाबला और ऐसे में पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर 4 बगैर नुकसान के। ये गेंद और एक बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए, हालांकि सरकते हुए ऑफ स्टंप की ओर आ रहे थे, वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र खत्री प्रहार किया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा, एक फील्ड अनुशासित गेंदबाजी क्रिकेट की भाषा में बात करें करनी होगी यहाँ पे अरसलान को, ताकि शुरुआती क्षणों पे कुछ दबाव बना पाए बल्लेबाजों पे। और दूसरी ओर बल्लेबाजों का प्रयास होगा कि शुरुआती क्षणों में भले ही रन कम बने लेकिन एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला की आवश्यकता। इस ओवर में अगली बार, इस बार फिर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, प्रहार जरूर किया था, निगाहें कहीं निशाना कहीं और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। इस बार पिछली 2 गेंदों की अगर हम बात करें, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ इसमें गेंदबाजी अरसलान द्वारा।
Aslan is possessing a lot of talent, and as per his body structure is concerned, and thinner bodied bowler, but he can really swing the ball and he can do what he wants to do with the ball, and he's possessing a lot of talent. His body language says us, and his action, and it's wonderful bowling stance. It's like the international arena bowlers too. They love to display their body in a wonderful and a memorable fashion, and the way this bowler is bowling, look at his body structure, look at his action, and shot for caught behind, and umpire signals it's out. First blood is drawn. Dev Khatre gone for naught. What a delivery, outswing on that occasion, and are just praising his talent, and that has proved worthy of his talent. And look at that one, it finds the outside edge and goes straight to wicketkeeper. He dives full length to his right and takes a dipping low catch. Never easy, but he's done well on the occasion. It's 4 for 1. Gone for naught, gone for golden duck, but credit goes to Arsalan for bowling such a peach. He's a wonderful pacer. Look at his body stance, look at his bowling stance, and the action is wonderful. This is what you need to do best at international arena, and if you manage to stick to basics and to stick to your plans, there is not much time left in your life that you will get a call up for the district level events, and beyond that, and you can get a chance to represent country. But new man walks in, Raghavendran walks into the center, Vishwakarma, and this is a difficult name to pronounce for me. Nasir, it's easy for you to pronounce. It's 4 for 1, but Arsalan is possessing a lot of talent, wonderful bowler, terrific skills, and has been awesome with the ball, unbelievable, full of caliber and class, and his action tells us he's like Brett Lee of Australia, and he's hitting the deck in a nice fashion, and is bowling in that corridor of uncertainty, but he is having spikes on his shoe, and that can really distract the track to a larger extent, and it can create sort of a panic, and there will be a rough patch developed because of his foot landing area, and that can create a panic in the second innings when the other side will come into bat, and the spinners can make maximum out of it, and ball can really assist to them. It's a wide ball, it's a Weber delivery to be precise. It's a big wide, 5 for 1 in over number 2. 1 विकेट के नुकसान पर देवेंद्र खत्री 0 पे आउट हुए। निराशाजनक प्रदर्शन और आउट होकर पवेलियन लौट चुका है। इस समय नए बल्लेबाज राघवेंद्र विश्वकर्मा जो कि इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं देवेंद्र खत्री के स्थान पर, और देखना होगा कि अब यहां से वे अविनाश शर्मा के साथ मिलकर किस प्रकार की साझेदारी आगे ले जाकर के अपनी टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। 1.3 अरसलान एक सफलता मिल चुकी है और 3 रन देकर के अच्छी गेंदबाजी, लेकिन कुछ दिशाहीन गेंदबाजी, एक स्लिप के सहारे इसमें गेंदबाजी हो रही है। अरसलान राइट आर्म ओवर द विकेट राघवेंद्र के लिए बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, समझ नहीं पाए, हालांकि पैट और पैट मिला करके सम्मानजनक रूप से रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद में अतिरिक्त उछाल, और उस अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा दिया बल्लेबाज राघवेंद्र को, और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 5 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी। कैप जयपुर और कैप पुणे के विरुद्ध एक बेहतरीन मुकाबला, खूबसूरत मैदान, और ऐसे में एक बेहतरीन मुकाबले की आशंका क्रिकेट के सभी समर्थक, दीवाने और प्रेमी चाहते हैं कि भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक बेहतरीन, आकर्षक और रोमांचक स्थिति वाला मुकाबला हमें देखने को मिले। कैप जयपुर 5 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं। अरसलान है गेंदबाज, इस बार फिर बढ़िया गेंद, बॉलर के सर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक गेंद, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए पहला चौका इस पारी का लगता हुआ, और इस चौके के साथ ही राघवेंद्र विश्वकर्मा का खाता खुला, उनका व्यक्तिगत योग 4, कुल योग 9 कैप जयपुर का टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हो। He sits for the ball, admires his bowler's back drive, but that was a sublime shot, and you can't take credit away from the right-hander. 4 was written all over it, and courtesy Raghavendran, and it's a kind of a hallmark and a trademark shot. But Arsalan is bowling heart out spell to be precise, and very fair honest. But that was an excellent shot. That was just class, and a natural grafter at crease. It's 9 for 1 Cap Jaipur against Cap Pune. Next ball from Arsalan. Oh, drifts down the leg side, flicked away. But there is a protection, just a run. And with that single, score moves into the double figures, 10 for 1 in over number 2. But that was down the leg side delivery. That was asking for trouble.
but the batsman could only manage a gentle tickle onto that one and straight down towards the fielder there at backwards Skellig, and who just gives away a single, and that won't hurt the bowling side. It's 10 for the loss of 1, but Arsalan providing that much needed breakthrough of Dev Khatri, who gone for golden duck after facing and using 3 balls, but that delivery, and after that delivery he bowled some terrific balls in that corridor of uncertainty, and he has made it crystal clear that I'm possessing a lot of talent, and I need the biggest podium and platform where I can excel to my level best. This is the message from young kid. I must say he's like a kid for me. He's in teenage days and below 14, not beyond that, but I call him the future star of India, and Arsalan is a really treat to watch. Wonderful bowler. 10 पे 1 2 के बाद ये है अब तक का स्कोर, और राघवेंद्र जिन्हें 5 रन अब तक का बनाए हैं 3 गेंदों से, और अविनाश शर्मा जो कि आज प्रारंभ करने आए थे देवेंद्र खत्री के साथ, उन्हें अभी अपना खाता खोलना है। 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन अच्छी रणनीति उनकी, क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में एक विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा संयम बरतना होगा, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला की आवश्यकता ऐसे समय में टीम कैप जयपुर को। 10 पे 1 अविनाश शर्मा जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, लेकिन राघवेंद्र सामना करने के लिए बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने पिछले ओवर में खेले थे, और कहीं ना कहीं उनके इरादे स्पष्ट हैं। फील्ड प्लेसमेंट का सामना करने मुआयना करने के लिए क्षमा कीजिएगा इस समय तैयार, और एक स्लिप के सहारे उस छोर से पारी का 3रा ओवर लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट यश। दूसरे ओवर अपने कोटे का बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर, बढ़िया गेंद पूरी तरह से चकमा दिया वहां पर, हालांकि सिर्फ दिशा देना चाहते थे इस गेंद को ऑफ साइड में, लेकिन सफलता मिली नहीं, क्योंकि गेंद नीचे रह रही है, कोई अतिरिक्त उछाल इस समय गेंदबाज को मिल नहीं रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर शुरुआती क्षणों में बल्लेबाज को होती हुई। 2.1 10 वर्तमान रन गति 4.62, और इसी रन गति से 92 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्रिकेट मानचित्र का खेल इस बार लेग स्टंप से बाहर, एक और दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कैप जयपुर का 11 पुणे के विरुद्ध। कैप पुणे जो कि टॉस आज हारे थे और उन्हें फील्डिंग करने का अवसर मिला, लेकिन इन परिस्थितियों में देखना होगा कि किस प्रकार से शुरुआती क्षणों में एक विकेट उन्हें जरूर मिली है, लेकिन यहां से अगर एक आध विकेट और चटका लेते हैं उनके गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा इस मुकाबले में बना रहेगा। टीम कैप जयपुर 11 1 विकेट के नुकसान पर 3रा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले जो अनिवार्य है 6 ओवर का, वो इस समय प्रगति पर है, और देखना होगा उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं दोनों बल्लेबाज। ये गेंद और बहुत बढ़िया गेंद, हालांकि जबरदस्त प्रहार करना चाहते थे, और यहाँ पे बल्लेबाज अगर राघवेंद्र की बात करें, उनको गेंद की पिच तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे, क्योंकि आप खड़े खड़े अपनी जगह गेंद की पिच तक पहुंचे बिना स्ट्रोक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अवसर अतिरिक्त जोखिम से भरे नहीं होते। Of course, and you need to get to the pitch of the ball and then top of the shot, and better is to stick to basics and don't waste opportunities, and it was an opportunity thrown at you, but he was unable to grab that next ball, and this is where it was again asking for hit, but he is unable to make any sort of connection, and no connection, only connect is that thin air, but Raghavendran has to bat out of his skin. It is 11 for the loss of 1 in over number 3. We are halfway down in over number 3. Yash Gujar is operating, conceding 3 wides, and it's Team Cap Jaipur 11 for 1 against Team Pune. Again Yash, oh, it's a Weber delivery, it is a Weber, it's a big wide again, but it is off direction delivery, string and space way down the leg side. One more run added, 12 for the loss of 1. Lot of extra straight away, and this isn't good sign for Cap Pune. They need to keep things tight, getting an opening, getting a wicket in the second over. Now it is time to exert a lot of pressure and build the pressure, and try to dry up each and every single, and here a big call for a single, and it was never gonna be easy, but in the end both the batters managed to cross over for a quick single. 13 for 1, it was full of danger, but the fielder there at backward up point couldn't do very much. He has put on white cap, was unable to pick it up in time and return the ball, allowing Raghavendran to give strike back to Avinash Sharma, who opened the innings. He used 6 balls in over number 1 and was unable to open his attack.
his account to be precise. He comes down the track, dances down the track. Oh, this could be tight, this could be tight. But Arsalan unable to hit the bullseye with that throw on that end, which we call the non-striker's end. But Raghavendran and Avinash made it in the end. And Avinash is off the mark, and he opened his account on ball number 7. May I remind you again, he played the maiden over first over in the beginning. It's 14 for the loss of 1 in over number 3. Last ball remains to be bowled. On strike will be Raghavendran again. In comes Yash to Raghavendran and wraps him on the patch out for LBW. And umpire unmoved. Over comes to an end, 3 down. It's 14 for the loss of 1. Cap Jaipur taking on Cap Pune, and this match, and Pune has to win 3 out of 3 on the trot. They need a hat-trick of wins to qualify for Kashmir Cricket League Jaipur second edition. And we got the publicity secretary of the Kashmir Cricket League, and Mr. Gulzar Ahmed. He's staying on the bench there, and he's having a vigil on this all-important cricket match, because in the end he has to answer before the media and other channels that how the league was conducted and how it went on its way. It's 14 for the loss of 1. Arsalan will continue to bowl, and this boy I admire quite a lot, because I seen him bowling here today for the first time, and it reminds me of great Bretley, who used to bowl at tremendous pace, and it was full of sweat and swing. But we'll have to wait and watch. Will this be a combination of sweat and swing from this man Arsalan, a young fella, thinner bodied? But only the time will tell us. The way he bowled in over number 1, credit goes to this man. I really admire him from the core of my heart and from the concentric circles of my heart, and I believe that in the near future he can be nice picking for teams and franchises at district level, then at state, and from state to IPL and other events. It is 7 extra so far in over number in a 3.1 ball. We are in over number 4. It's 14 without for the loss of 1 in the form of the lone wicket falling in the form of Dev Khatri, who was undone, who got undone with that beauty from this young lad Arsalan on that occasion. That was outswing, and Dev Khatri couldn't do very much. Gone for golden duck. On strike is Avinash Sharma, and Avinash chases the ball. Oh, there is a fielder, there is a fielder. He made mass of it, and it goes over his head. And Devofic fielder there, a third man, allows Avinash Sharma to fetch a boundary. He was in all sorts of trouble. He was chasing the ball outside off, and it flies off the top edge, but Arsalan has to take that. Unlucky there. It wasn't a wicket taking ball nonetheless, but that boundary costed him, because the fielder was Devofic in size. He was unable to latch on to the ball, and Avinash survives. He's on to 18 for the loss of 1. Cap Jaipur against Cap Pune. This is over number 4. We are in toss, falling into the kitty of Cap Jaipur, and their captain straight away deciding to bat. Goes and bows. Oh, takes him on the full, and this could have been wicket number 2, but the fielder Sam drops a lollipop, the ball popping out of his hand. I think he has hurt his thumb while holding on to the ball there. His left thumb is in pain. He is down on the ground, but he is feeling that heat there. And now the spray comes in, but he isn't feeling well. And what I believe and what I see and what I observe from naked eyes, it looks like he's in deep pain. But Arsalan, the man unlucky today. It should have been wicket number 2 to him, but it wasn't in the end. It's 18 for 1. Sam unable to hold on to the ball. Avinash, it could have been curtains for him, but he's still there. He must be thanking that he's still unbeaten. 18 for the loss of 1 in over number 4. Arsalan again, the very own young Bretley of this spot. Oh, that's a good shot. That is a half tracker, but look at Avinash. Crushed through covers for 4. What a shot, a slap of the back foot. He gone berserk on that ball, and it was asking for it. So does the batsman. But Arsalan, sometimes he's unable to exert any amount of pressure on the bat, and sometimes he bowls such kind of looseness, and no one would believe. You can't call him Bretley, a young Bretley, a young kiddie Bretley, but that delivery, it was totally pace up delivery. It was a wayward one, but he is possessing serious skills, what I believe, and I believe that he can really represent the country with the years to come, because he's still hardly a 13
और 22 अरसलान है गेंदबाज, इस बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और करारा स्ट्रोक, जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप पर मिली कदमों का इस्तेमाल किया और अपने आप को संतुलित करते हुए तिरछे बल्ले से गेंद को निकाल दिया कवर्स में, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका कैप जयपुर के लिए 26, 1 विकेट के नुकसान पे। 3.5 के बाद अविनाश शर्मा अब कुछ प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले ओवर्स में 1-2 ओवर में उनका पल्ला थोड़ा सा शांत था और परेशानी में लगातार थे, वो प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद ठीक तरीके से उनके बल्ले पे आ नहीं रही थी। लेकिन इस ओवर में अरसलान की ओर ने जबरदस्त प्रहार किया था और कहीं ना कहीं शायद उनका ये कहना चाहिए कि उनके जहन में ये बात तय होगी कि अगर शुरुआती क्षणों में ही इससे युवा गेंदबाज पे प्रहार किया जाए, दबाव बनाया जाए, तो आने वाले समय में उनके लिए और भी आसानी हो सकती है। 3.5, 26, 1 विकेट के नुकसान पर टीम कैप जयपुर और टीम कैप पुणे के विरुद्ध यह मुकाबला इस समय बीच मैदान में। निर्धारित 20 ओवर होंगे और पहली बार इस समय बीच मैदान में। अरसलान इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार गेंद अंदरूनी सिरे पर लगने के बाद वही पास में लुढ़की, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, कोण बनाते हुए, हालांकि इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया था अविनाश। ओवर पूरा हुआ 26 पे 1, 4 के बाद अविनाश शर्मा 13 गेंदों से 13 और राघवेंद्र विश्वकर्मा 6-8 गेंदों से। तो ये अब तक का लेखा जोखा। और अगर वर्तमान रनगति की बात करें 6.36 और इसमें अविनाश शर्मा 13 पे खेल रहे हैं 13 गेंदों से, राघवेंद्र विश्वकर्मा 6-8 गेंदों से। हालांकि देवेंद्र खत्री जो कि शुरुआत करने आए थे, प्रारंभ करने आए थे, लेकिन वे निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद 0 पे आउट हुए थे और इसमें पवेलियन में जाकर इस मुकाबले का नजारा करते हुए। कैप जयपुर 26 पे 1, 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। पारी का 5वां ओवर, राघवेंद्र और अविनाश शर्मा की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, लेकिन राघवेंद्र जो कि 6 रन पे नाबाद है 8 गेंदों से सामना करने के लिए। और की शुरुआत पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि गेंद का पीछा जरूर किया था, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वहां पर बढ़िया गेंदबाजी और सबबते वहां पे दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाज द्वारा, लेकिन एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी वहां पर गेंदबाज यश को, जो कि पारी का 30वां ओवर, कुल मिलाकर अपने कोटे का 30वां ओवर, पारी का 5वां ओवर लेकर के उस छोर से, यानी कि दूर वाले छोर से। और देखना होगा कि किस प्रकार से राघवेंद्र विश्वकर्मा उनके सामने बल्लेबाजी करेंगे। यश उस छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट राघवेंद्र के लिए। इस बार बढ़िया गेंद नीचे रहते हुए जाने के लिए मजबूर किया, अच्छी गेंदबाजी, शानदार वापसी, पिछली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार सटीक लाइन और लेंथ के साथ। और ये दिखा दिया वहां पर गेंदबाज ने कि उनमें दमखम है, वो इस प्रकार से गेंदबाजी कर सकते हैं, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ। विकेट कीपर जो कि स्टंप से थोड़े से दूर, ये देखते हुए कि तेज गेंदबाज है यश, और ऐसे में कोई अतिरिक्त जोखिम वो मोल लेना नहीं चाहेंगे। पहली स्लिप, एक स्लिप के सहारे इसमें गेंदबाजी हो रही है। और अगर ऑफ साइड की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 4 के साथ इसमें गेंदबाजी हो रही है। और क्या बढ़िया मिश्रण इसमें गेंदबाजी में करते हुए यश। 2.2 ओवर उनकी गेंदबाजी का विशेषण, 6 रन, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है। अब तक 2 गेंदें की हैं और दोनों ही डॉट गेंदें। और राघवेंद्र पे लगातार इस समय दबाव बढ़ता चला जा रहा है। देखना होगा कि अगर आप बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा, तब जाकर के आप एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये इस बार गति में परिवर्तन, बाप लिया, पैड पे लगी, अपील की जा रही है, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम न करा एडवोकेट हिलालदार ने, और 1 रन तब तक पूरा कर लिया संभवतः लेग बाई के रूप में। 1 रन और 4.427, 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश 13, राघवेंद्र 7, 12 गेंदों से। यश अब तक अपने कोटे का 3रा ओवर फेंक रहे हैं, 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 7 रन ने खर्चे। हालांकि क्या पाई थी कसी हुई गेंदबाजी, लेकिन वो प्रभावशाली गेंदबाजी अब तक का मनवर देखने को नहीं मिला जिसके लिए वे जाने जाते हैं। Of course, you're absolutely right, and the way Yash is operating is also having a wonderful stance. And look at his elbow; it is exactly like that, a 90-degree angle, and that's what makes him a perfect bowler. Absolutely right. You need few skills, and he's got those skills, but now he need to just enhance and equip himself with the new tactics and to exert a right amount of pressure and to make it loud and clear that I'm the big fish, I'm the big man, and to be called in to deliver at each and every level. And it's 27 for the last one after 4.5 balls. Last ball remains to be bowled. Umpire Advocate Hilal is having a word with the fielding side because captain is designing the field
Now the Slayer mid-wicket is in place and position, and there is a Skellig umpire, Jahangir John. Oh, again that swing, and he wasn't going to play on to that one, but he just keeping his vigil on it and very watchful on that occasion and closing the bat face earlier on. He saw the ball is moving in the air and lets it go through. 5 done, 27 for 1. Avinash, 13 of 15 balls. Raghavindran, 7 of 12 balls, and Dev Khatri gone for naught of 3 balls. Arslan Siddiqui, 2 overs, 1 for 20, and Yash Gujar, 3 overs, none for 7, and this has been the wonderful bowling display by this man, bowling 3 overs without conceding a run. 27 for the loss of 1 after 5 overs. But Pune has done really well. They will be happy way things unfold so far, but they need to keep things under check from here on, because this is a T20 game. It can just change its momentum, and the shift can momentum can shift from one end to other, and in no time, and wildly I can say. But you just need to keep you cool, and you just need to keep your head on the game and just think within that and play that mind game, because in the end mind game matters, and how you equip yourself and how you adjust and apply yourself, and that matters the most. We'll have to wait and watch. 27 for the loss of 1. We are in over number 6. Ball 1 coming up. Is it there is a change in the bowling department. Arslan in place of Arslan, I think Advait will be bowling. Advait will be bowling to right-hander Raghavindran. Advait, Pune based, another young fella, young boy, is gonna play with a wide slip in place. Goes and bowls to, oh, look at that one. This is natural talent, to be precise, and I don't want to say that, I don't want to compare it with the valley-based talent that we have in Kashmir, but it tells us that these young berries, born in that place of Pune, where cricket is followed like religion, and it's the case of the entire country. India follows the cricket and each and every sport with that fervor like that of it's like that of a religion, the religious thing here. And you can see this is the outcome of that, loving the game in such a memorable fashion, in such a wonderful manner. You can see these guys are coming up, and the straight away starts off with a wonderful delivery. Another pitch, 28 for 1 in over number 6 with a wide slip, and there is a fly slip and back with a point. Comes down the track, but that's a wonderful shot, and that should run away down to the boundary for 4. But it took a lot of doings from the commentators to say the com box, which is a mobile com box, and it wasn't easy to say, but that was a wonderful shot, to be precise. One has to give credit to this man. He delivered a wonderful thumping punch of the back foot. It was off drive, but I call it punch because there was a lot of power behind it. No use of the not too much bottom and little bottom end, but it was struck firmly, so firmly, and off the top it goes, races away like a traceable down to the boundary. 32 for the loss of 1 in over number 6. But Avinash is displaying now the thumping punch, and this man Advait, who just brought him to the attack, need to hit the right here, his right line and length, and need to keep ball in that he need to keep the ball in that corridor of answer, and keep the batsman checking, guessing what's going to come on the next one. But look at that one again, the ball moving outwards. This is how you can keep the opponent side under check. But sometimes we are unable to stop ourselves from praising these young berries, because they're possessing that talent. One has to admire those skills, the way they swing the ball, the way they bring the ball back into the right hand, the way they understand the game, and the way asking questions to the batters in different styles. It's been really special. He goes again. Saw the batsman coming down the track, and look at the ball. He followed him and bowled down the leg side, and it kissing him and wrapping him, and he wears it on his pads. And one more leg by, but that was never convincing. He was nowhere near. He was in a bad situation, in a bizarre kind of a place to be, and no one wants to be as a batter in that place. But in the end, score moves on to 33 for the loss of 1 in over number 6. 5.4
33 एक विकेट के नुकसान पर राघवेंद्र 8-13 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर में अगली बार। और इस बार खूबसूरत गेंद, लेकिन खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर और पहला छक्का स्ट्रेट बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। तो पहला छक्का इस पारी का कैप जयपुर के बल्लेबाज द्वारा, और इस छक्के के साथ ही अविनाश शर्मा और राघवेंद्र की जोड़ी समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे से अब खुलकर स्ट्रोक्स लेने लगे हैं क्योंकि जानते हैं उनकी निगाहें जम चुके हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के स्ट्रोक्स अवश्य उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये वहां पर बल्लेबाज राघवेंद्र की कि जिस प्रकार से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, यह दर्शाता है कि आप किस शैली के बल्लेबाज हैं, और आत्मविश्वास लौटा होगा इस छक्के से बल्लेबाज राघवेंद्र विश्वकर्मा का। व्यक्तिगत योग 14 गेंदों से, कुल योग 39, 5.5 के बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर के तैयार। हालांकि आखिरी गेंद है इस ओवर की, और गेंदबाज अद्वैत के पास जो कि इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंद, और इस बार गति में परिवर्तन, लेग साइड पे उसको खेला, हालांकि ऑन साइड पे खेल करके एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, हालांकि विकेट कीपर गेंद को सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए, और तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन बटोरने का। एक रन के साथ ही ओवर पूरा 39 पे 1 6 के बाद, यानी कि पावर प्ले जो फील्ड रेस्ट्रिक्शन है, अनिवार्य पावर प्ले, वो समाप्त हो चुका है, और अब फील्डिंग जो है वो छतरा दी जाएगी, बिखरा दी जाएगी। तो ऐसे में उनके पास समय है कि किस प्रकार से यहां से वो अपने इस रन गति को आगे चलाएंगे। अगर विकेट्स की बात करें, पहला विकेट 1 पे, दूसरा संभवतः एक ही विकेट वहां पर गिरा है, और देखना होगा कि इन परिस्थितियों में 40 एक विकेट के नुकसान पर 6 के बाद यश गुजर 3 ओवर में 7 रन दिए हैं। तो देखना होगा क्या उनको लगातार उस छोर से गेंदबाजी करवाएंगे उनके कप्तान अथवा नहीं, क्या उन पे विश्वास जताएंगे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जयपुर की अगर हम बात करें, टीम कैप जयपुर की बात करें, उन्होंने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया कैप पुणे के विरुद्ध, और अब तक 6 ओवर में संभवतः 40 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। 6.69 इसमें वर्तमान रन गति है, 6.69 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बना है टीम कैप जयपुर ने। और पारी का 7वां ओवर, और कहीं ना कहीं संभवतः वहां पे एक और परिवर्तन किया जा रहा है उस छोर पे। पहले इस छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, अरसलान की जगह दाविद को लगाया गया था, और अब उस छोर पे यश की जगह एक और परिवर्तन किया जा रहा है। तो देखना होगा क्या ये परिवर्तन यहाँ पे कुछ रंग लाएगा, क्या इस साझेदारी को तोड़ने में ये गेंदबाज सक्षम हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। खूबसूरत मैदान जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए, एक बेहतरीन वातावरण, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुंची हुई। और ऐसे में राघवेंद्र विश्वकर्मा और अविनाश शर्मा की जोड़ी बीच मैदान में, अविनाश 17-18 गेंदों से और राघवेंद्र 15 गेंदों से 100 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में एक आशा बनी हुई है क्रिकेट के समर्थकों की, दीवानों के, कि एक जो धीरे धीरे से साझेदारी पनप रही है इसको आगे ले जाया जाए, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाज, एक और परिवर्तन, जी हाँ, अमोल चंद ने इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो देखना होगा अमोल किस प्रकार से यहाँ पे कितने अनमोल रहेंगे अमोल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, चुनौती रहेगी उनके सामने शुरुआती ओवर में, और देखना होगा इस चुनौती को वे कैसे स्वीकार करेंगे। 7वां ओवर पहली गेंद लेकर के, सबसे पहली गेंद लेग स्टंप पर, हल्के हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेल करके एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर, गिरते हुए वहां पर खिलाड़ी ने, सैम है वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया था, लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। 1 रन और 6.1 के बाद 41 पे 1 2 3 4 5 6 और 3 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल, और उनके सामने है अविनाश शर्मा। अविनाश के लिए ये गेंद इस बार गति में फिर परिवर्तन, बाप लिया था सीधे खिलाड़ी के पास, कलाइयों के सारे गेंद उनसे छिटकी और निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि वहां पर मिस फील्डिंग का नतीजा, और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। उपहार के रूप में कहना चाहिए ये चौका मिलता हुआ अविनाश शर्मा को, और उनका व्यक्तिगत योग 21 पहुंच चुका है 19 गेंदों से। कुल योग टीम कैप जयपुर का 45 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 सफलता जो कैप पुणे को मिली है देवेंद्र खत्री के रूप में, जिन्होंने आज निराशाजनक प्रदर्शन किया था, 0 पे आउट हुए थे। और ऐसे में इन 2 बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी, इस बार फिर लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर भी चौके, 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी वहां पर क्षेत्ररक्षक को, लेकिन तब तक समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को दूसरा रन पलटकर वापस लौटने की। नो बॉल का इशारा वहां पर संभवतः। तो कुल मिलाकर
खाते में लगातार रन जोड़ते हुए। और शुरुआती क्षण, हालांकि ये पारी का 7वां ओवर है, तो ऐसे में इन अतिरिक्त रनों से बचना होगा कैप पुणे की टीम को। और फ्री हिट का इशारा अंपायर एडवोकेट हिलाल द्वारा 48 पे 1 6.2 के बाद देखना होगा फ्री हिट का लाभ किस प्रकार से लेते हैं अविनाश शर्मा। अविनाश के लिए ये गेंद अमोल की इस बार कदमों का इस्तेमाल ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन समझ नहीं पाए। हालांकि सीधे बल्ले से उसको उठाना चाहते थे और चतुराई भरी गेंदबाजी, दिशा और लंबाई में थोड़ा सा वहां पर नियंत्रण करते हुए गेंद में गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर फेंकी गेंद और निश्चित तौर पर फ्री हिट का कोई लाभ नहीं मिला। 48 पे 1 6.3 के बाद इस बार फिर बढ़िया गेंद मिडल स्टंप की शेत में खेला, जरूर तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी थी, लेकिन उस और खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया और लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास अटैक इस समय गेंदबाज अमोल चंदने का। और देखना होगा कि इन परिस्थितियों में वे कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी कर पाते अथवा नहीं, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा इस गेंदबाज द्वारा बल्लेबाज अविनाश शर्मा पे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, धीमी गति की गेंद और फिर कार्यवाही, नतीजा वही, रन और खाते में जुड़ता हुआ कैप जयपुर के लिए। 49 पे 1 21 अविनाश शर्मा 22 गेंदों से और राघवेंद्र विश्वकर्मा इस समय 16 गेंदों से। और अमोल चंद ने इस समय गेंदबाज जो कि 4 गेंदें फेंक चुके अपने पहले ओवर में, 7 रन खर्चे हैं, थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए शुरुआती क्षणों में वो पैनापन अभी तक उनकी गेंदबाजी में दिखाई नहीं दे रहा है। जयपुर कैप जयपुर इस समय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं। इस बार फिर लेग स्टंप पर, हालांकि वहां पर छोड़ना चाहते थे, गेंद पैड पे लगी, अपील की जा रही है लेग स्टंप को छोड़ दी हुई और लेग बाई का इशारा अंपायर एडवोकेट हिलाल द्वारा। इस बार उत्साह में से एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश की जा रही थी वहां पर गेंदबाज और क्षेत्ररक्षण द्वारा अंपायर पर, लेकिन नकारा। 49 असंभव थे 50 से इस 1 रन के साथ 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश और राघवेंद्र की जोड़ी बीच मैदान में, लेकिन इस बार राघवेंद्र सामना करने के लिए तैयार अमोल का। ये गेंद और बाहर लगभग फुल टॉस हो चुकी थी ये गेंद, उसको निकाला सीधे बल्ले से मिडल स्टंप की शेप में आती हुई गेंद को एक पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। राघवेंद्र के खाते में 1 रन, उनका व्यक्तिगत योग जा पहुंचा 17 और कुल योग 51, 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 7वां ओवर इस समय प्रगति पर संभवतः ओवर पूरा हो चुका है। जी हाँ, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और लगातार यहाँ पे थोड़ी सी क्रिक हीरोज में दिक्कत और जिसके चलते स्कोरबोर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है और निश्चित तौर पे हालांकि प्रयास किया जा रहा है और नेटवर्क की सुविधा भी यहाँ पे सही मायनों में उपलब्ध नहीं है और थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो रही है। और इन परिस्थितियों में देखना होगा कि यहाँ से क्या रणनीति होगी गेंदबाजों की। अगर कैप पुणे की बात करें, लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, 4 गेंदबाजों का अभी तक प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन मात्र 1 सफलता अरसलान के खाते में। 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की थी, यश गुज्जर, उसके बाद अमोल और आदित्य। ये 4 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें आज गेंदबाजी द्वारा आजमाया गया है। टीम कैप जयपुर 49 6.4 स्कोरबोर्ड पे दिखाया जा रहा है। संभवतः 51 7 ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत और स्पिन आक्रमण का प्रयोग किया जा रहा है। पहली गेंद और इस बाहर ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली, निकाला उसको, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना रोक पाता नहीं जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो स्वागत किया यहाँ पर नए गेंदबाज, युवा गेंदबाज का चौके से वहां पे राघवेंद्र विश्वकर्मा ने और इस चौके के साथ स्कोर संभवतः आगे बढ़ता हुआ 55 पे पहुंच चुका है। 8वें ओवर में 7.1 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर देवेंद्र खत्री। मात्र ऐसे दिग्गज बल्लेबाज, अच्छे खासे अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन आज कुछ कर नहीं पाए और संभवतः दूसरे ही ओवर में वो एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे अंपायर द्वारा। एक बार फिर इस ओवर में इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, फिर जगह मिली, फिर खेला और गेंद फिर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और क्या बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ साइड में लिया, पहले अपने आप को संतुलित किया और उसके बाद निकाल दिया गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर आगे संभवतः 59 पे पहुंच चुका है और देखना होगा कि रनों की गति पे किस प्रकार से अंकुश लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा संयम रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ एक सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और इस प्रकार का अवसर जब आप बल्लेबाजी को दे रहे हैं, आप बल्लेबाज को वहां पे अवसर दे रहे हैं स्ट्रोक खेलने का, तो शायद यह खमियाजा निश्चित तौर पे आपको भुगतना पड़ेगा। 59 संभवतः
एक विकेट के नुकसान पर ये पारी का 8वां ओवर। एडवोकेट हिलाल अहमद डार और जहांगीर जॉन आज के इस मुकाबले का नेतृत्व करते हुए अंपायरिंग इस मुकाबले में कर रहे हैं। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास और ऐसे में पूरी तरह से अपना पूरा अनुभव इस मुकाबले में झोंकते हुए टीम कैप जयपुर और कैप पुणे के विरुद्ध यह मुकाबला। और इन परिस्थितियों में देखना होगा कि यहाँ से क्या योजना रहेगी। जूझ रहे हैं वहां पर गेंदबाज, लेकिन अभी तक सफलता मिल नहीं रही है। 5वें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है, पाठक हैं संभवतः। और देखना होगा पर्यटक जो इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर अपील की जा रही है जोरदार, और अंपायर ने संभवतः इसको नकारा। हालांकि उत्साह में ज्यादा विश्वास पे कम, और संभवतः वहां पे आउट करार दिया गया है। जी हां, तो एलबीडब्ल्यू के रूप में जी हां परिवर्तन रंग लाया और संभवतः स्टंप्स करार दिए गए वहां पर, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जी हां, और स्टंप्स करार दिए गए वहां पे राघवेंद्र। तो दूसरा विकेट अंततः पारिथिक ने दिलाई दिया, ये परिवर्तन रंग लाया और दूसरा विकेट एक अच्छी साझेदारी हो रही थी और एकाग्रता भंग हुई। वहां पर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। 59 पे दूसरा विकेट 7.3 के बाद। और कमालकांत शर्मा नए बल्लेबाज 29 नंबर की जर्सी पहने हुए इसमें धीरे धीरे से आप राघवेंद्र का स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन अविनाश की जितने भी प्रशंसा करें मनोवर उतने कम। एक एंड से पूरी तरह से जमे हुए हैं और मानो जिस प्रकार से वो पूरी तरह से संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सहयोग करना होगा दूसरे छोर से बल्लेबाजों का, तब जाकर आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कमालकांत शर्मा नए बल्लेबाज, अविनाश शर्मा 21, कुल योग 59, 2 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद। मनोवर 59 for the loss of 2 in over number 8. 7.3 balls done and dusted. We are halfway stage in over number 8. And Cap Jaipur, they were just trying to run away with the scorecard, and courtesy that little partnership, it was just growing. And at one time it could have been a disaster for the bowling side, but the Pune as well, holding on to their nerves. And they held their nerve, in the end getting rid of the partnership, removing Raghavendran, and that brings Kamalkant Sharma to crease. And Kamalkant and Avinash Sharma, these are the two batters, no slip at all. Oh, very first ball, a campus back and cross. Out was the short cover for a quick single. Is off the mark with that straight single up the very first ball. 60 for the loss of 2, yes of course, and there is a little issue with the network connectivity, but we are really trying our level best to provide you the flawless broadcast. So join us in numbers and don't go anywhere, don't fade away, because it's going to be an interesting game. Or again, hop stop made by the fielder there at short extra cover. And ball rebounding and ricocheting down towards the long off. 61 for 2 after 7.5 balls. With the ball to go, it is Kamalkant 1 of 1 and Avinash 22 of 24 balls, and Pratik goes again. Oh, that is a slog. That is a pull shot, half pull, half punch. Again as Pune, Cap Academy Pune feeling first against Cap Jaipur, and Jaipur are 62 for 2, 8 overs done and dusted, and not bad. And to me it's a wonderful start, it's a good score, and now they need to build a partnership for the next 6 overs till 14, and from 15 till 20, this passage of play you need big hitters who can really take the ballers on, and who can give themselves a charge, and who can really display that thumping punch, and those big hits, and those batters who can make the ball fly into the orbit time and again. They need those pinch hitters, and they need cameos at the fag end. Now 62 for 2, the foundation is set and the foundation is laid. Podium is set for that big score, but now it is the be precise, but this was the very first ball of his fresh over. A slip, fly slip, gully backward, a point, short extra cover, long off, short mid wicket.
Short mid wicket, and it's 62 for 2. We'll have to wait and watch. Next ball, that's a good shot, punched away down to the sweeper of cover, and both the batters will definitely scamper through for a quick single, and that's all they get, and the score moves on to next level. It's 63 for the loss of 2 in over number 9. It's 63 for 2 after 8.2 balls. Over number 9 we are in. Cap Jaipur has to change its gears, and we'll have to wait and watch. Amol Chandni will continue to bowl from that end where Alim Dar of Valley. Advocate Hilal is there. It's a big wider one. It was a dropped quicker through the air, and for a while I thought that this might be given as a wide. It might be signalled as a wide, but that wasn't the case. 63 for 2 after 8.3 balls. Next ball from Anmol. Oh, another good delivery. Good delivery. That one is straight on, and he was just trying to play for the spin, and he was trying to dab the ball in front or back with a point, but that wasn't spin there, and it was a straight on, and it passes the blade on way to wicketkeeper. No harm done. 63 for 2 in over number 9. Anmol Chandni again lunges forward, and a long stride forward, and works it onto the onside and scamper through for a quick single. 64 for 2 after 8.5 balls, and this good over so far. This has been really wonderful over. This has been good over. This has been tight over. Only 2 singles of it so far, but a boundary or a 6 will definitely spoil it. 64 for 2. On strike will be Kamal Kant Sharma, and Kamal tries to improvise. It goes in no man's land. It's going to tease each and every fielder. 3 men were converging, won't be able to bring it back into the play. That's a boundary to spoil the over. Not a bad over to be precise. That's still a good over, but that boundary will definitely spoil as per the scorecard is concerned, because the score swelled to 68 for 2, and had that boundary not been scored by the batter, this could have been still in radar and within control, I can say, but they let the momentum shift the other way again with that boundary, and Kamal taking that risk. It wasn't risk free, it was full of risk, and nonetheless he will get a boundary. And I can't understand how he's behaving here. The cameraman, it looks a bit awkward, a kind of a fashion, and it is 68 for 2 after 9 overs, and I won't explain anything else, and because it can really hurt him, but it is 68 for 2 in over number after 9, and 9 done. It's Kamal Kant Sharma and Avinash Sharma, and score is 68 for the loss of 2. 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और 68 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अविनाश शर्मा और कमलकांत शर्मा, ये है जोड़ी बीच मैदान में जो इसमें नाबाद है, और इसमें 11 ओवर का खेल बचा है। अगर कमलकांत की बात करें 7 पेरा बाद, और अविनाश वहीं पे 23 पेरा बाद 27 गेंद से पारी का प्रारंभ करने आए थे देवेंद्र खत्री के साथ। अभी तक बने हुए हैं पसीने से तरबतर, लेकिन आगे ले जाकर के इस पारी को समापनी की ओर ले जाना होगा, अंत तक खेलना होगा, तब जाकर के आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 9 ओवर 68, 2 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदों से 23 अविनाश शर्मा, और 9 गेंदों से समाप्ति 7 कमलकांत। और वहीं पे प्रतीक की बात करें, और 1 ओवर में 11 रन देकर के 1 विकेट। हाँ, प्रतीक जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के एक सफलता उनको मिल चुकी है, और 4 नंबर की जर्सी पहने हुए क्रीज के कोने से इस बार फ्लाइटेड, लेकिन फुल टॉस और निकाल दिया, लेकिन पीछे खिलाड़ी लाजवाब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ रन बचाए न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए। और 1 रन समाप्ति और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही 69, 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 के बाद वर्तमान रन गति 7.53, और इसी रन गति से यदि स्कोर बनाते रहे तो 151 तक पहुंच सकती है कैप जयपुर की टीम। 69 पे 2। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर धीमी गति की गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ, देखिए एक कोण बनाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जहांगीर जॉन का इशारा वाइड का। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 70 पे 2, 9.1 के बाद
टीम कैप जयपुर टॉस जीतने के बाद टीम कैप पुणे के विरुद्ध खूबसूरत मुकाबला इस समय बीच मैदान में। इस बार लेग स्टंप और देखिए मिश्रा, देखिए मोमेंट गेंद का बेहतरीन, हल्के लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर मुड़ती हुई हल्का सा वहां पे मोमेंट देखने को मिला और पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज कमलकांत शर्मा को। 6 के दूसरे 7 रन बनाकर आबाद है 70, 2 विकेट के नुकसान पर जयपुर का स्कोर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, हालांकि 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। ऑन साइड में खेल करके 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ धीरे धीरे 1-1 रन से आगे स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते हुए दोनों बल्लेबाज और अब तक 71 पे पहुंचा दिया है 2 विकेट के नुकसान पर 9.3 पारी का 10वां ओवर 13 रन अप के साथ। ये गेंद इस बार फिर फुल टॉस, फिर उसी दिशा में है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात, देखना है रोक पाते अथवा नहीं। जी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका वहां पर बल्लेबाज अविनाश शर्मा के बल्ले से और उनका व्यक्तिगत योग 28 पे जा पहुंचा। 29 गेंदों का सामना किया है 75 पे 2। 7.75 यह है वर्तमान रन गति, यानी कि 7.75 प्रति ओवर के हिसाब से इसमें रन बना रही है टीम कैप जयपुर की टीम कैप पुणे के विरुद्ध। और देखना होगा कि किस प्रकार से इस रन गति को रोकने में सफलता मिलेगी वहां पर गेंदबाजों को। प्रतीक एक बार फिर 1.4 ओवर 18, 1 विकेट उनको मिल चुकी है। 4 नंबर की जर्सी पहने हुए अविनाश के लिए, जो कि 28 पे नाबाद है, बल्ला पहले से हवा में और इस बार फिर लेग स्टंप पर गेंद के आने का इंतजार किया, बैक पर जाकर के अपने लिए जगह बनाते हुए निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं। और जब तक गेंद विकेट कीपर के पास थ्रो करके आती तब तक का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का। 1 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज और एक बार फिर स्ट्राइक मिलती हुई कमलकांत शर्मा को। 75 पे 2, 9.4, 9.5, 76 पे 2, यह है लेखा जोखा। कमलकांत इस समय 8 पे है नाबाद, 7 गेंदों का सामना किया। एक बार फिर धीमी गति के कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, जी हां गेंद जाएगी दर्शक वीरगांव में। 6 रनों का इशारा अंपायर जहांगीर चांद का। क्या कमाल का स्ट्रोक, और जैसे ही गेंद थोड़ी सी ओवर पिच मिली, कदमों का इस्तेमाल गेंद की पिच तक पहुंचते हुए सीधे बल्ले से उठा दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही ओवर भी समाप्त, 82 पे 2, 10 के बाद, यानी कि आधी पारी समाप्त हो चुकी है और कैप जयपुर की टीम में एक अच्छी स्थिति में ला खड़ा कर दिया अविनाश ने। अविनाश जो कि इस समय 29 पे नाबाद और उनके साथ कमलकांत शर्मा 14 पे नाबाद, 8 मात्र गेंदों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उनके इरादे स्पष्ट। हल्की हवा इस समय मैदान में चल रही है और तेज धूप खिली हुई और कहीं ना कहीं 20 से 25 डिग्री का तापमान, और ऐसे में खूबसूरत कांटे की टक्कर का मुकाबला कैप जयपुर और कैप पुणे के विरुद्ध चलता है इस खूबसूरत मैदान में। बालाजी एकेडमी क्रिकेट मैदान जहां पे ये मुकाबला इस समय हो रहा है। क्या खूबसूरत मैदान जयपुर में, और ऐसे में अगर इस मैदान की बात करें, बालाजी क्रिकेट एकेडमी मैदान की बात करें, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। और बाउंड्रीज की बात करें, बड़ी बाउंड्रीज है चारों ओर। आज दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिले कैप जयपुर के बल्लेबाजों द्वारा। फिलहाल आधी पारी समाप्त हो चुकी है, निर्धारित 20 ओवर का कोटा 10 ओवर की समाप्ति के बाद 82 पे 2। और कमेंट्री के लिए मनोवर 82 for 2, and after 10 overs and a Shaukat, and the camera person of Jigger Sports Time. Shaukat, how can we say that it is beyond 3 lakh that attendance? It isn't that. It's 82 for 2 after 10 overs with 10 to go, but that's a wonderful sports field. It's a beautiful sports field as per the dimensions are concerned. This is Balaji Cricket Academy ground here in Jaipur. Pinks tee, and here comes the pacer, left arm pacer. Captain brings him on, Suraj Pawar. And the Pawar with the very first ball, outward movement, and batsman camps back, backs away a little bit, and is trying to slash that one like Virendra Sehwag style. We use it to camp back, and then without any fit movement, he used to slap the ball like we call in Hindi, thapad rashid khan. It's like that, and he used it to slap the ball time and again. But this isn't that. It is in everyone's cup of tea. Sehwag was one in millions, and he was one in 1.5 billion people in India, and that's what 82 for 2. And Avinash, it was backing away. It wasn't easy for him, but that left arm pacer Suraj Pawar bowling in that channel of corridor of uncertainty, where we call the Asian cricketers, they're pretty vulnerable to that whenever the ball tends to swing outwards. Oh, number 11, but Pawar straight away trying to make a mark here.
Cap Academy Jaipur taking on Cap Academy Pune. Pune versus Jaipur. It's a big match, and Pune got a hard nut to crack. They need to win 3 on the trot. 3 out of 3. They need to create that hat trick, and they need to make it 3 and 3. Oh, that turn! Freebie Spy wide. Spy gifted wide. Will take the score 87 for 2 in over number 11. But that isn't a good thing. That's going to be a bad thing for a team like Pune. Pune need to ball in the right areas in that corridor of uncertainty, but that 5 wides is gonna. It's like that. Adding insult to the injury. And to be precise, you need to ball in that corridor of uncertainty, area of vulnerability. 87 पे 2 10.2 के बाद सूरज पवार गेंदबाजी कर रहे हैं और बाएं हाथ से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर लेग सबसे बाहर दिशाहीन गेंद विकेट कीपर भी शोके और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए प्रयास। इस गेंदों से अविनाश शर्मा और कमलकांत शर्मा इस समय 14 पे नाबाद। हालांकि अगर गेंदबाजी की बात करें, अच्छा खासा रफ्तार जो उनके पास है, उस रफ्तार का प्रयोग निश्चित तौर पे वो कर रहे हैं, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और यदि एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभावशाली गेंदबाज हो सकते हैं। 10.92 2 विकेट के नुकसान पर टीम कैप जयपुर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप पुणे के विरुद्ध। अविनाश है सामने, बाएं हाथ के गेंदबाज सूरज पवार के लिए। पवार चले, उनकी ये गेंद पर ऑफ स्टंप पर बढ़िया गेंद ऑफ मिडिल स्टंप पे आते हुए सीधे बल्ले से खेला। हालांकि वहां पर मिस फील्ड कर दिया, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे 1 रन और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 जयपुर क्रिकेट अकेडमी पठान जयपुर कैप जयपुर 93 2 विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवर की गेंदबाजी यानी कि 11वां ओवर मात्र प्रगति पर 2 विकेट खोए हैं और कहीं ना कहीं अच्छा कहा जा सकता है कैप जयपुर के दृष्टिकोण से, क्योंकि 8 विकेट उनके हाथ में। तो आने वाले समय में अगर 2-4 ओवर की और साझेदारी कर लेते हैं दोनों बल्लेबाज तो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर टीम कैप जयपुर की। अगली गेंद को फिर ऑन साइड पे खेल करके 1 रन पूरा कर रहे हैं और 1 रन के साथ एक बार फिर स्ट्राइक अविनाश के पास। सर, अविनाश की अगर बात करें, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत में वो थोड़ा धीमा खेले, लेकिन उसके बाद एक बार जब उनकी निगाहें जम गई तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और हर खराब गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं मनवर। And this is how batters, it's been the case from day one. Batters try to get the rise in, then top of the shots, and nothing special from that perspective. It's been a conventional method, and just stick to basics and work on your basics. Wait for bad balls, and that was the ploy, and it worked for Avinash Sharma. And Avinash is still there, and after all those odds he's still unbeaten, and if he isn't able to score on a ball, but he's keeping wickets intact, and that will definitely provide an opportunity to middle and down the batters to cash on with the passage of time. 95 for 2 in over number 11. Last ball managed to be bowled Pawar. Top rate 13 of 5 balls, and expensive because he bowled 2 wide deliveries. And now takes him on the full toss, but straight of fielder there at sweeper of cover, 1 more run. 96-11 done at the cost of 2. Team Cap Jaipur winning toss are electing to bat first and asking Pune to bowl, and Pune are still bowling their tour, and they're making them toil hard, and Pune is unable to get a wicket here to make things happen. And at this crucial juncture, projected score, it tells us 175 is gettable and possible with this pace, the way they're scoring 96 for 2. But now, to be precise and fair honest, if they won't lose a wicket, and if they carry on and cash on with 7 or 8 and over from here on, they can still fancy to 170 or beyond that. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और 11 ओवर में 96 2 विकेट के नुकसान पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 ही विकेट खोए हैं और दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे से उनकी निगाहें जम रही हैं और ऐसे में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बात कही जा सकती है कैप जयपुर के लिए। लेकिन दूसरी बात, अगर पुणे की बात करें तो उनके गेंदबाज, युवा गेंदबाज उनके पास हैं, लगातार एक दूसरे से इस समय मंत्रणा हो रही है और ये देखते हुए कि किस प्रकार से यहाँ से गेंदबाजी ऐसे तैसे करके इस साझेदारी को तोड़ना होगा। एक विकेट की आवश्यकता यहाँ पर कैप पुणे के गेंदबाजों के लिए
और क्या उसमें सफलता मिल सकती है अथवा नहीं। और कहना चाहिए एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन और फैजान नई गेंदबाज होंगे। इस शॉट से पहले गेंद वहां पर प्रयास असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही वहां पे अपनी गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर फेंकने का प्रयास किया, पहले से पाप गए थे वहां पर बल्लेबाज और उन्होंने गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और ऑफ साइड में खूबसूरत स्ट्रोक करके प्रयास जरूर किया था वहां पे क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और 4 रन और खाते में। इसके साथ ही 100 रन तेहरा हिंसा इस समय पार करते हुए टीम 102 विकेट के नुकसान पर कैप जयपुर। 11.1 के बाद फैजान परिवर्तन के तौर पर 7वें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है और 7वें गेंदबाज है कैप पुणे की ओर से। एक बार फिर ये गेंद और बाहर नो का इशारा, कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा, वहां पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, लगातार 2 गेंदों से 2 चौके वहां पे और इस चौके के साथ ही स्कोर उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ कैप जयपुर का 104 पे पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में। कमलकांत जो कि लगातार प्रहार कर रहा है, 24 उनका व्यक्तिगत योग, 105 2 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों से कमलकांत अब धीरे धीरे से अपने हाथ खोल रहे हैं क्योंकि जानते हैं विकेट उनके हाथ में है, विकेट उनके सुरक्षित हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम लेना वे पसंद करेंगे। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी कि एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ सीधा साधारण उनकी गेंदबाजी देखने को मिले, तब जाकर के कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर लपेटने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी सीधे उनके पास और याश थे वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। डॉट गेंद अब तक का इस ओवर की अगर हम बात करें तो 9 रन अब तक का आ चुके हैं 2 गेंदों से 11.2 105 टीम कैप जयपुर का। टीम कैप पुणे के विरुद्ध टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं बालाजी क्रिकेट अकेडमी का ये खूबसूरत मैदान जहां पे ये मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। 786 नंबर की जर्सी पहने हुए ऑफ स्टंप पर जगह मिली और खमियाजा भुगतना पड़ा फैजान को। जी हां, लिख लीजिए, एक और चौका। जैसे ही ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद मिले, अपने आप को संतुलित करते पूरा वजन पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। कमल के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन और खाते में और इस चौके के साथ ही 109 पे पहुंचा दिया कैप जयपुर का स्कोर मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। देवेंद्र खत्री 0 पे और उसके बाद राघवेंद्र विश्वकर्मा, ये 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं कैप जयपुर की ओर से। 109 2 विकेट के नुकसान पर 28-14 गेंदों से कमलकांत शर्मा और अविनाश शर्मा 31 पे नाबाद हैं। फैजान अब तक 3 गेंदों से 13 रन खर्च कर चुके हैं और इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खर्चीले अब तक साबित हुए हैं। लगातार उनके साथी गेंदबाज उनसे बात कर रहे हैं कि संयम आत्मविश्वास के साथ सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें, ज्यादा जगह ना दें वहां पर बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर फेंकने की कोशिश, हालांकि आपके पास फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करने का अवसर है और जो आपकी फील्ड है उसके मुताबिक आप गेंदबाजी कर सकते हैं। एक बार फिर फैजान चले, ये गेंद और इस बार पूरी तरह से सरक करके ऑफ स्टंप पर आ गए थे, गेंद को हवा में खेला और वहां पर प्रयास असफल, कैच छूटा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। लोगों सीमा रेखा से बाहर, एक और दर्शनीय स्ट्रोक। हालांकि इस बार अवसर बना था विकेट लपकने का, लेकिन वो अवसर फिलहाल जाता हुआ और कैच वहां पे आमतौर पर क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कैच विन मैचेस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक और जीवन दान यहां पर कमलकांत को। और कमल की अगर हम बात करें, लगातार प्रहार कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अब इस प्रकार की आवश्यकता है। 113 पे पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर 11.4 के बाद कमल 32-15 गेंदों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फैजान के विरुद्ध इस समय और युवा गेंदबाज है, युवा तेज गेंदबाज, उनके विरुद्ध इस प्रकार का जो है अतिरिक्त जोखिम ले रहे हैं, हर बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं। हालांकि अच्छा कहा जा सकता है बल्लेबाज के लिए, आत्मविश्वास उनका बहुत ही बढ़िया और जिस आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये उनके लिए एक और अच्छी बात हो सकती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कमलकांत शर्मा 32-15 गेंदों से, अविनाश शर्मा 31 और फैजान 17 रन खर्च कर चुके हैं अपने पहले ओवर में। मात्र 4 गेंदें उन्होंने अभी तक फेंकी हैं, 5वीं गेंद लेकर के तैयार 11.4 113 पे 2। कैप जयपुर टॉस जीतने के बाद कैप पुणे के विरुद्ध इस खूबसूरत मैदान में इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, फिर हवाई यात्रा पे इस बार खिलाड़ी और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों का इशारा।
जी हाँ, एक और छक्का और एक बार फिर लगातार प्रहार कर रहे हैं और एक भी वहां पर चल नहीं रही है गेंदबाज फैजान की। ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं। और क्या लाभजनक कहना चाहिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर खेला कमल कांत ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए। और पहले से कमेंट हो गए थे बड़े स्ट्रोक्स के लिए और निकाल दिया ऑफ साइड से बाहर। ऑन साइड में इस बार खेले थे, समझते ऑफ साइड में और सीमा रेखा से बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही 119 पे 2, 11.5 के बाद कमलकांत 38-16 गेंदों से और अविनाश नाथ सेकंड छोर पे 31 पे। फैजान इस ओवर पे अगली बार आखिरी गेंद लेकर के ये गेंद और इस बार फिर पिछली गेंद के पड़ रहे थे, लेकिन इस बार लपके जाएंगे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पे और कमलकांत को वहां पे अंततः आउट करने में सक्षम, सफलता मिल गई फैजान को। 23 रन इस ओवर से आए, लेकिन एक सफलता, एक दुरिंदर बल्लेबाज को आउट करने में सफलता मिल गई है फैजान को। ओवर पूरा 12 ओवर की समाप्ति 119 पे 2। तो अंततः एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद 38 रनों की आकर्षक तेज तरह पारी खेलने के बाद आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और ड्रेसिंग रूम से सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी दाद कर रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं और क्यों ना दे, एक बड़ी पारी उन्होंने खेली। और ऐसे में आउट होकर तीसरे विकेट के रूप में वे चलते बने पवेलियन की ओर और पवेलियन से नए बल्लेबाज नमोदार हुए। मोहम्मद अनिस नए बल्लेबाज आए हैं और देखना होगा कि अविनाश शर्मा के साथ वे किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल 12 ओवर समाप्त, 119 3 विकेट के नुकसान पर टीम कैप जयपुर टॉस जीतकर कैप पुणे की विरुद्ध। और आपको बताता चलो, सबसे पहले देवेंद्र खत्री खाता नहीं खोल पाए, उसके बाद विश्वकर्मा और उसके बाद अभी कमलकांत शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट के 38 रनों का योगदान दिया आउट होने से पूर्व। तो 12 ओवर में 119 पे 3, 8 ओवर का खेल बचा है, 7 विकेट हाथ में और कहीं ना कहीं 170-180 का लक्ष्य निश्चित तौर पे। हालांकि क्रिकेट महानुचिंताओं का खेल है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ठोस विश्वसनीय शुरुआत मिल चुकी है और अविनाश शर्मा भी नाबाद है क्रीज पर, तो कहीं ना कहीं 150 से 170 के आसपास लक्ष्य देना चाहिए टीम कैप जयपुर। Will agree with your statement, but 23 of an over, an expense to getting a wicket now nonetheless. But 23 isn't a bad figure. It's maximum number of runs for me and in this match so far, and they're maximizing the damage. 119 for 3, 23 of an over. It was 96 prior to this over. It was 96 of 11. This is cricket at its best. It is 119 for 3 after 12, and there is the jet flies over the centre on the eastern part of the ground. The jet flies in air, and it's on its way to find the destiny. I don't know where it is traveling. I think it's going abroad, but it takes off and is on its way. 12 done, 119 for 3, and there on your screen is Aleem Darafali, Mr. Advocate Hilal, and then Jangir John. Cap Pune taking on Cap Jaipur. Pune need to understand and they need to play according to the situation, and situation demands them. 5 works and situation demands them special contributions, and they need to ball in the right areas. And it was a hip hooray voice, and they loved the state and they loved the academy. It's 119 for 3, but Pune has given Cap a chance to set a big score for chase, but Pune, I think that they have enough batting in their lineup to tackle each and every big score, but each and every big score isn't easy, and sometimes it can backfire you. But 23 of an over, it was 12th over to be precise. It was Pezan operating with the ball and conceding too many runs, given
Cap Jaipur a chance to pile up in excess of 180, and now they're on road to create that score and to establish that mammoth total on the board. It's 119 for 3 after 12 overs, and Cap Jaipur taking on Cap Pune, and Pune need to win 3 on 3 to advance to the semis of Kashmir Cricket League. Pune is the 9th team induced and inducted in the league, and it isn't easy for Pune to beat other sides, other strong opponents. But 119 for 3 to all done. We will be in over number 13 of this all important cricket tournament. Now it will be Anmol Chandni to operate. Oh, that's a good shot. Off the turf it goes. Sweeper off cover. One more run. 120 for 3. 12.1 done. Mohammad Anas is off the mark. No, it is Avinash is off strike and giving strike back to Anas. Anas is yet to open his account and is yet to get up the mark. Anas will face Amol Chandni. Amol will be bowling. Can he be Anmol? In Hindi we call Anmol a special guy. And can he work with his magical band? It's a big wide and a different bowling style, and is putting a lot of power in his bowling, and is getting palm right behind the ball and giving a lot of energy to the ball, and is putting a lot of power in the ball. And when the ball is released, and while releasing the ball, his palm is right behind the ball to push it forward. It's 122 for 3 in over number 13. Cap Jaipur 122 for 3 in over number 13. Next ball. Shot for LBW. Umpire says not out straight away. Now the happy paces, but you will have to take that. It's a good decision in the end. Gentle breeze on its way. We need a breeze here because it's like a June-July season that we witnessed back home, and nowadays there is biting cold. It is freezing, but now here it is. It's almost melting here. It isn't freezing, it's melting here. And it is a different temperature out here, and I still have an umbrella on my head to save myself and other equipments. It's 122 for 3 in over number 13 for a 12.4 balls done and dusted. Amul, little shot from Amul, and it goes all the way down to the boundary for 4. And you know that we need to say ourselves too in between, and there was a little exercise today, and they're quite successful in doing these things, and never been successful throughout the season back home. But here I succeed thrice in a single day, and now it means that we're growing a little bit, and we're gaining experience in terms of how to shift to the com box in no time. It's a mobile com box, and it is easy to shift from one end to other end. But back home it wasn't easy because it was cultural-like players picking the ball up, hurling with tremendous sense of urgency in no time, and I was hurt thrice back home, but today it's not been the case by the grace of Allah. It's 4 down, 122 for 4, and Sharma is walking back to the Avinash, and the last man standing to me because he was went as an opener and batted through 13 overs, and still he was out there, and now the 5th ball saw the back of him, and now it's 12.5 down. It's 122 for 4. Vishal Chaudhary walks in, and Mohammad Anas. It is a combination of Muslim Hindu, and it's a great cultural heritage of the country that there is a bond between Muslims and Hindu players, and this is what India is about. There is a great bond between Muslims and the different communities here in India. It's been the amalgamation of the different cultures and the religions here in India. Oh, straight away, shot for LBW. And he's smiling, he says, what are you asking for? And Amol Chandni says, this is Advocate Alim Dar of Valley. And he's not going to raise the finger up, and a better is to keep quiet and let's work away and just take the respective positions. It's 13 down, successful over comes to an end. The big fish caught in the net, 13 down, 122 for 4, and Khatri will be the happiest man there on the bench, and because his team has done quite well.
He has done really well so far and picking up losing 4 wickets, but his side been able to fetch 122. Not bad with 7 overs to go. 42 balls, 180 is still gettable. 13 ओवर पूरे हो चुके हैं, 122 पे 4। विशाल चौधरी नए बल्लेबाज, एक गेंद का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए। मोहम्मद अनस उनके साथ एक गेंद पे 1 और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 122 पे 4। आखिरी के 7 ओवर का खेल बचा है और देखना होगा कैप जयपुर की टीम क्या लक्ष्य छूना चाहेगी, क्या लक्ष्य देना चाहेगी विपक्षी टीम यानी कि कैप पुणे को। ये देखते हुए कि आखिरी के 7 ओवर और 6 विकेट हाथ में, और एक बार फिर प्रतीक को लगाया गया है 2 ओवर में 25 रन देकर के एक सफलता। और छोटा सा बॉलिंग रनअप, तिरछे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद और इस बार पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, उसको उठा दिया, हवा में है गेंद, एक टिप्पा सबब ऐसा प्रतीत हो रहा है, जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब स्ट्रोक, जैसे ही जगह मिली और धीमी गति की गेंद को उठा दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही 128 पे पहुंचा दिया कैप जयपुर का स्कोर, मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 13.1 के बाद। काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं प्रतीक, 2.1 ओवर में 31 रन दिए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अनिस के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, 2 गेंदों से 7 रन बना करना बाद, और विशाल चौधरी को खाता खोलना है जो कि नानसा की छोर पे खड़े हैं। एक बार फिर ये गेंद, इस बार फुल टॉस, जी हाँ, ऊंचा लंबा, ये जाएगी जयपुर, जी हाँ, 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। एक और छक्का, और इस छक्के के साथ ही 134 पे पहुंचा दिया। 2 गेंदों से 2 छक्के, पहले ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को निकाल दिया ऑफ साइड से सीमा रेखा से बाहर, और इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही जगह मिली और फुल टॉस गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक, और 2 गेंदों से 12 रन खर्चे हैं और कुल मिलाकर 2.2 ओवर में 37 रन दिए हैं। एक सफलता जरूर मिली है वहां पर गेंदबाज प्रतीक को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मोहम्मद अनिस से समय 3 गेंदों से 13 रन, 2 छक्कों की मदद से, और आप कल्पना कर सकते हैं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस समय सकारात्मक सोच के साथ बीच मैदान में बल्लेबाजी हो रही है। 13.2 कैप जयपुर, 134 पे 4। गेंद, एक बार फिर गेंद के आने का इंतजार किया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकालना चाहते थे, उस और खिलाड़ी थे तैनात, उनके पास गेंद पहुंची, लेकिन उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस पे पहुंचाया गेंदबाज प्रतीक के पास बगैर किसी रन के। 3 गेंदों से 12 रन अब तक खर्च कर चुके हैं प्रतीक। एक बार फिर गेंद लेग स्टंप से बाहर, फिर घुमाने का प्रयास, इस बार लेग साइड से बाहर की गेंद को वाइड करार दिया गया, और 1 रन और अतिरिक्त के रूप में 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 134 पे 4। 13 पे बाद 4 गेंदों से मोहम्मद अनस, और वहीं पे विशाल चौधरी 0 पे 1 गेंद का सामना किया। इसमें नानसा की चोट पे खड़े इस पारी में स्वागत किया। फिर अगली गेंद, फिर ऊंचा लंबा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और छक्का, लगातार इस समय छक्कों की बरसात होती हुई, और मोहम्मद अनिस 5 गेंदों से 19, 3 छक्कों की मदद से इसी ओवर में अब तक वे 3 छक्के लगा चुके हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं उनने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और इस बार हर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद अनिस, उसमें सफलता भी मिली है मोहम्मद अनिस को। 141 पे 4 ये गेंद, और इस बार फिर गेंद के आने का इंतजार किया, हालांकि फ्लाइट हिट, जिसमें फ्लाइट देने की कोशिश, 1 रन पूरा किया, ऑन साइड में खेले हैं, दूसरे रन के लिए लौटना चाहेंगे, लेकिन मना किया वहां पर विशाल चौधरी ने, और 1 रन और 1 रन से संतुष्ट। कुल योग 142, 4 विकेट के नुकसान पर 13.5 पहली बार इस ओवर में सामना करने के लिए विशाल चौधरी, जिन्हें कि अभी अपना खाता खोलना है। 1 गेंद का वे सामना कर चुके हैं, और इस ओवर में उन्हें अब जबकि अवसर मिला है तो देखना है आखिरी गेंद को वो किस प्रकार से खेलते हैं। यहाँ पे हालांकि नानसा की चोट पे आ गए हैं मोहम्मद अनिस। 20 पे बाद 6 गेंदों से, लेकिन विशाल चौधरी के लिए, और विशाल चौधरी इस बार कदमों का इस्तेमाल करके फुल टॉस गेंद पे लगभग इसको उठाकर मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सफलता मिली नहीं। निचले सिरे पे बल्ले लगने के बाद वही पास पे लौट के अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया प्रतीक ने। ओवर पूरा, और 142 142 क्षमा कीजिएगा, 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर पूरे हो चुके हैं। 6 ओवर का खेल बचा है। कैप जयपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप पुणे के विरुद्ध, और बालाजी क्रिकेट एकेडमी का ये खूबसूरत मैदान जहां पे ये मुकाबला इस समय बीच मैदान में चल रहा है, और एक बेहतरीन वातावरण, अच्छा खासा तापमान, और ऐसे में 2 टीमों के बीच समय भिड़ंत होती हुई अब तक अगर बात करें बल्लेबाजी जो है वो
सफल रही है कैप जयपुर की ओर से और दबदबा रहा है बल्लेबाजों का। एक शानदार तरीके से अब तक बल्लेबाजी हुई। चौथा ओवर में 142 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। विशाल चौधरी 0-2 गेंदों से, मोहम्मद अनीस 20 6 गेंदों से। और प्रतीक की गेंदबाजी का विश्लेषण, 3 ओवर कोई बैटर नहीं, 45 रन और 1 सफलता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके विरुद्ध आज बल्लेबाजों ने, खास करके पिछले ओवर में जिस प्रकार से विशाल चौधरी और मोहम्मद अनीस ने उनके विरुद्ध जो है प्रहार किया था। नए ओवर की शुरुआत पारी का 15 ओवर लेकर के उस छोर से तैयार सूरज पवार, जो कि 1 ओवर में 14 रन दिए हैं उन्होंने, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है, वो भी काफी खर्चीले साबित होते हुए। और देखना होगा क्या अब कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि 6 विकेट हाथ में। तो ऐसे में अब पूरी तरह से गियर्स बदल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जानते हैं चाहे मोहम्मद अनीस हो चाहे विशाल चौधरी हो, क्योंकि जानते हैं कि आखिरी के 6 ओवर का खेल बचा है और जितने ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे उतने वो बटोर सकते हैं इन परिस्थितियों में, ताकि एक बड़ा लक्ष्य, एक विशाल ठोस लक्ष्य वो विपक्षी टीम को दे सके। नए ओवर की शुरुआत पवार है सामने पहली गेंद लेकर के। और बाद पहली गेंद बढ़िया गेंद मिड स्टंप की शेप में और उसको सीधे बल्ले से बल्ले के बीचों बीच रक्षात्मक रूप से रोका। वहां पर बल्लेबाज मोहम्मद अनीस ने बगैर किसी रन की शुरुआत डॉट से 14.142 कैप जयपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस निर्णायक मुकाबले में। मोहम्मद अनीस 20 पे नाबाद है, 7 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के वो अपनी इस पारी में लगा चुके हैं। एक बार फिर फील्ड का मुआयना कर रहे हैं और देखना होगा 1 2 3 4 5 और 4 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर पवार, और इस बार पवार के खेत को उठा दिया उस और खिलाड़ी हवा में गेंद, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद जब तक उनके पास पहुंची लगभग 1-2 कदम सीमा रेखा से अंदर फील्ड करते थ्रो करते दूसरा रन वहां पर मिल गया। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी दौड़ तालमेल का परीक्षित क्षेत्र दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया है और 2 रन और खाते में जोड़ते हुए दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 144 पे 4। कैप जयपुर का मोहम्मद अनीस 22 8 गेंदों से, विशाल चौधरी 0-2 गेंदों से और लगातार प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अब उन पे कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है, क्योंकि उस दबाव को वो झेल चुके हैं और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लगातार प्रहार कर रहे हैं, आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता हुआ बल्लेबाज का। दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास होगा कि एक और विकेट यहां से चटका ली जाए, साझेदारी को तोड़ने में सक्षम हो जाए। हुआ नहीं, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद और गेंद स्टेडियम से जा बाहर। 6 रनों का इशारा है रुकिए हिलाल का। तो क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेग स्टंप पर जैसे ही अपनी दिशा भटके और पूरी तरह से उसका खमियाजा भुगतना पड़ा सूरज पवार को और बेहतरीन स्ट्रोक, चौथा छक्का अपनी इस पारी में लगने वाला मोहम्मद अनीस द्वारा 9 गेंदों से 28 पे नाबाद। और आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस समय बीच मैदान में मोहम्मद अनीस द्वारा कैप जयपुर के 150 रन पूरे होते हुए 150 4 विकेट के नुकसान पर 14.3 के बाद। 150 for 4 after 14.3 balls. And somebody tells us that one of the players from Pune is looking like Ishan Kishan. Ishan Kishan isn't easy to look like him because Ishan is a different player of different caliber, getting caller for IPL, then getting caller for the country, and going berserk last time, hitting double 100 against Bangladeshis, and it was really a nightmare for Bangladesh and its bowlers and its think tank, and he's really done well. And he says, oh come on, oh, cameraman, and I don't know what's happening to him. He's jealous of things and how Cap is, and yes, of course, and he belongs to that part. It's 150 for 4 in over number 15, half a stage in over number 15, and Suresh Pawar is operating. And that one goes straight to short extra cover, chance of a run out or quick return, but wicketkeeper was unable to grab the ball in time, collect the ball in time and dislodge the bails, and he falling without whiffing off the bails. And you know, he was unable to whip off the bails to make a strong statement. So no statement at all, nothing happened, everything is okay, perfect. 150 for 4, Cap after 14.4 balls with 5 overs and 2 balls to go and to come, 32 balls remaining, and Suresh Pawar is operating. He has conceded 22 so far. Pawar to Anas, no slip in place of the inner edge onto the onside. Filler is way behind, and look at this man, he was halfway stage, and a shy comes in, and look at the umpire, and I don't know, the fielders thought that these are the sticks there hitting him
without a berserk shot, and look at Jahangir John he's in deep pan. He says that our fingertips are gone and the fingers are on the receiving end, and they're asking for the spray, and it will be sprayed, and it's because of that he's in deep pan, and my heart out goes to Jahangir John, and he has hurt himself. But look at Alim Darafwali is smiling, all smiles around the park, but this man is weeping to me because he's in deep pan. And score was on 151 for 4, but he need to be courageous out there. It isn't easy to officiate a cricket match, a cricket game. You need to be perfect all the time. Oh, look at this one. It kissing our combox, and a little tickle onto the combox, but it goes on its way, so it's okay still, alhamdulillah, and it's okay. 151 for 4. I don't think that Cricket Heroes is again working, but still we believe that it will work now. It's 153 for 4 after 14.5 balls. It's taking a little bit time, few seconds in updating. And Anas on to 29 of 11 balls. What a cameo, and what a man Anas been for Cap Jaipur. Yes, he is from that place, no doubt. In comes again Suresh Pawar, and Pawar, I don't think he's having a little bit love with that leg stop line, and he's hitting that at a time and again and again. He says, no, this is my target, I'm going to hit it again and again. And now again find that place, and I was just trying to take it off the ground and let the ball pass on, but that wasn't the case, because Anas nearly wearing it on his bat on to the onside. He skips for a quick single. It's 155 for 4, 15 done and dusted. It's Cap Jaipur in a commendable position, and we got camera person alongside us. How it is beautiful to work as a landsman each and every day. Is it easy or a bit difficult? बिल्कुल शौकत एसटी हमारे साथ बने हुए हैं और स्वागत करना चाहिए उनका। और 154 4 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। आखिरी के 5 ओवर का खेल बचा है और देखना होगा इन 5 ओवर में कितने रन बटोरेंगे। निर्धारित 30 गेंदें बची हैं और 30 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। 154 पे 4, 15 ओवर की समाप्ति के बाद विशाल चौधरी खाता नहीं खोल पाए, अभी भी नाबाद हैं। 2 गेंदों का सामना किया और मोहम्मद अनिस की बात करें 12 गेंदों से 30 रन। सूरज पवार 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 26 रन कोई सफलता नहीं। है उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण और एक बार फिर अरसलान को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। देखना होगा अरसलान किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, उनको अब इस छोर से, हालांकि इसी छोर से उन्होंने पहले गेंदबाजी की थी लेकिन उनको हटा लिया गया था और एक बार फिर अब 16वें ओवर में उनको कप्तान ने वापस बुला लिया है। तो देखना है वे किस प्रकार से विशाल चौधरी के विरुद्ध गेंदबाजी करनी है और इस दूसरे स्पेल में क्या वो कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी करने में सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं। पहली गेंद और इस बार बढ़ गया गेंद मिडिल और लेग स्टंप की शेप में आती हुई इसको विशाल चौधरी ने निकाला। 1 रन पूरा कर रहे हैं जब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती, हालांकि सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाया, नहीं तक खतरे में पड़ सकते थे। 23 और विकेट के बीच में और जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम। 2 रन और 156 पे 4, 15.1। मोहम्मद अनिस 32, 13 गेंदों से विशाल चौधरी को अभी अपना खाता खोलना है और ऐसे में देखना होगा कि यहां से मोहम्मद अनिस लगातार प्रहार कर रहे हैं। अरसलान जुआ तेज गेंदबाज, अच्छी खासी उनके पास रफ्तार गति है उनके पास, लेकिन उस गति से किस प्रकार से वहां से वो विचलित करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद अनिस को, ये देखने वाली बात होगी। ये गेंद और आप सबसे बाहर अपने जगह खड़े खड़े गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं, स्ट्रोक लिया था जरूर लेकिन गेंद छकाती हुई, गेंद कहीं बल्ला कहीं और बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। जयपुर कैप जयपुर 156 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। मोहम्मद अनिस 32, 14 गेंदों से विशाल चौधरी नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे। अरसलान 2.2 ओवर 22 रन, कोई मेडल नहीं, 1 सफलता उन्हें मिल चुकी है। युवा गेंदबाज दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार खूबसूरत गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई गेंद को ऐसे तैसे करके निकाला वहां पर मोहम्मद अनिस ने और 1 रन और बटोर लिया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 157 पे 4, ये पारी का 16वां ओवर प्रगति पर।
विशाल चौधरी और मोहम्मद अनिस, लेकिन एक बार फिर क्रिक हीरोज में शौकत यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते हमें स्कोरबोर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है। 15.2 अभी दिखाया जा रहा है 156 पे 4, लेकिन लगातार हमारे जो स्कोर और स्टैटिस्टिशियन है वो इसमें लगे हुए हैं और देखना होगा कि वो किस प्रकार से इस स्कोरबोर्ड को जल्द से जल्द निश्चित तौर पर वो ठीक करना चाहेंगे। फिलहाल ये गेंद और बाहर फिर मिडल स्टंप पे बढ़िया गेंद चौधरी के लिए, चौधरी ने इसको निकाला, ऑफ साइड में खेला स्ट्रोक को, हालांकि मिसफील्ड हुई वहां पर, खिलाड़ी दौड़ा और 1 रन और खाते में। जी हां, धन्यवाद स्कोरर, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 159 पे पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर 158, 15.4, 158 पे 4। मोहम्मद अनिस 33 पन था, किया दूसरे विशाल चौधरी 2 और 159 पे 4। ये पारी का 16वां ओवर। अरसलान है गेंदबाज, सामने है मोहम्मद अनिस और निश्चित तौर पर वहां पे अपने कदम छूके गेंदबाज अरसलान ने, और अरसलान वापस अपने गेंदबाजी के मौके पे आते हुए ये देखते हैं लंबा गेंदबाजी का निशान है उनका और लंबा रनअप भी है उनका, और इस रनअप से जिस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं और अच्छी खासी रफ्तार भी उनके पास है, युवा है, तो ऐसे में एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद, और बाहर फिर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की छेद में, इसको निकाला ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की छेद में। जब तक फील्ड होती, थ्रो होती, तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोड़ बदलने का। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 159 पे जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर 15.5 आखिरी गेंद लेकर के तैयार अरसलान। उनकी गेंदबाजी 2.5 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेड नहीं, 25 रन, 1 सफलता उनके खाते में। मोहम्मद अनिस जो कि नारसा की छोर पे 34-16 गेंदों से बनाकर, और विशाल चौधरी सामना करने के लेग स्टंप से बाहर इसको खेलना चाहते थे, सफलता मिली नहीं, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर जहांगीर जॉन का। एक और अतिरिक्त के साथ ही 160 पे 4। 15.5 के बाद कैप जयपुर टॉस जीतने के बाद कैप पुणे के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते खूबसूरत मैदान बालाजी क्रिकेट अकेडमी जयपुर का ये खूबसूरत मैदान, और ऐसे में 2 टीमों के बीच भिड़ंत होती है। लेकिन अब तक अगर बात करें तो पलड़ा इस समय कैप जयपुर का बारी, क्योंकि 15.5 ओवर में 160 रन बना लिए हैं, अभी भी 4 ओवर का आना इसके तुरंत बाद बाकी, तो 170-180 अवश्य होगा लक्ष्य, और दूसरे पारी में आसान नहीं रहेगा। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, T20 को ताबड़तोड़ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन उतना भी ताबड़तोड़ नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी में आपको 170 या 180 भेजना होगा। इस ओवर में अगली बार अरसलान है गेंदबाज, ये गेंदबाज बढ़िया गेंद नीचे रहते हुए पूरी तरह से चकमा दिया, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा 160 पे 4 16 के बाद। तो 160 रन बन चुके हैं, 4 ओवर का खेल बचा है। कैप जयपुर के लिए 24 गेंदें अभी भी निर्धारित है, और इन 24 गेंदों से कितने रन बटोरेंगे, और निश्चित तौर पे 180-90 और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 200 के आसपास वे पहुंच सकते हैं, क्योंकि 16 ओवर पूरे हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल बचा है। 160 पे 4 विशाल चौधरी 4 गेंद से, मोहम्मद अनिस 34-16 गेंदों से। और ये अब तक का लेखा जोखा अरसलान की गेंदबाजी का विश्लेषण बताता चलो। 3 ओवर कोई मैटर नहीं, 26 रन 1 विकेट, ये है उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। और यहाँ पे कुछ संदेश ड्रेसिंग रूम से हालांकि पानी लेकर के पहुंचे थे विशाल और मोहम्मद अनिस के लिए साथी खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं अब यही संदेश होगा कि आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिएगा। आखिरी 24 गेंदें जो बची है, करीब 30-40 रन अगर और बटोर लेते हैं तो निश्चित तौर पे 200 तक पहुंच सकते हैं। हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर श्री शौकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार अपने कैमरे की आंख में हर वो क्रिकेट का हसीन पल कैद करते हुए, और कहना चाहिए कि बहुत बहुत आभारी उनके वो इस मुकाबले में अपना नेतृत्व देते हुए। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद बाएं हाथ से, और लेग स्टंप की छेद में मौदा चाहते थे, सफलता नहीं मिली, हालांकि ऐसे तैसे करके 1 रन पूरा कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप की छेद में खेल करके 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 161। 4 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 17वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी सूरज पवार के पास। 2 ओवर में 26 रन, 2.1 ओवर की गेंदबाजी 27 रन, उन्हें कोई सफलता मिली नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ से सूरज पवार, एक तेज गेंदबाज। जहां तक कैप पुणे की टीम का सवाल है, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने
विशाल चौधरी जो कि 4 गेंदों से 1 रन बनाकर नाबाद हैं और इस बार लेग स्टंप पर इस बार सफलता मिली। हवा में खेला हुआ सीधे खिलाड़ी के पास, सुन को भेद नहीं पाए और उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, कैच कर लिया। मोहम्मद अरसलान ने गेंद को लपक लिया। 5वां विकेट गिरता हुआ इस समय कैप जयपुर का और विशाल चौधरी मात्र 1 रन का योगदान देने के बाद वापस निराश कदमों के साथ, निराशाजनक प्रदर्शन इस समय विशाल चौधरी का वापस पवेलियन लौटते हैं 5वें विकेट के रूप में। 16.2 161 पे 5 कैप जयपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई कैप पुणे के विरुद्ध। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर अरसलान ने पकड़ा, लेकिन अगर बात करें मोहम्मद अनस की जो कि 34 पे नाबाद है, 17 गेंदों का सामना किया, 34 रन बनाए हैं और क्या लाजवाब ताबड़तोड़ आकर्षक बल्लेबाजी उन द्वारा। और यहां पे विशाल चौधरी जो कि आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन, उनके प्रेमी, उनके समर्थक चाहते थे कि आकर्षक पारी खेले ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद वापस लौटे, उनके स्थान पर आदिल मंसूर पहुंच चुके हैं और देखना होगा आदिल मंसूर और मोहम्मद अनस की जोड़ी, क्योंकि मोहम्मद अनस काफी लंबे समय से विकेट पे बने हुए हैं, उनकी निगाहें जम चुकी हैं, तो वे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी होगी वहां पर आदिल मंसूर को। 161 पे 5। 16.2 बाराची क्रिकेट एकेडमी का ये खूबसूरत मैदान जहां पे कैप जयपुर और कैप पुणे के विरुद्ध आपस की भिड़ंत और देखना होगा कि इस भिड़ंत को अंत में किसके नाम लिखा जाएगा। फिलहाल अगली गेंद को सीधे बल्ले से खेला, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए वहां पर बल्लेबाज आदिल मंसूर ने खाता खोल लिया पहली गेंद से, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 162 पे 5। 16.3 के बाद वर्तमान रन गति 8.82 और इसी रन गति से 196 तक पहुंच सकते हैं और देखना है क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाएगी कैप जयपुर की टीम अथवा नहीं। मोहम्मद अनस 34 17 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से सामना करने के लिए तैयार सूरज पवार का। 27 रन खर्च कर चुके हैं 2.3 ओवर में। एक सफलता उनके हाथ लगी है इस बार लेग स्टंप की छेद में और गेंद को पहले से पाप लिया था। ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। मोहम्मद अनस के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय जन्नतेदार स्ट्रोक और 6 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए और कुल जोक पहुंचाया 168 5 विकेट के नुकसान पर। ये है मोहम्मद अनस और 4 छक्के अब तक लग चुके हैं उनकी पारी में। क्या कमाल की बल्लेबाजी और ऐसे समय में जबकि टीम कैप जयपुर को आवश्यकता थी इस प्रकार की बल्लेबाजी की और निश्चित तौर पर आज उन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का यहाँ पे प्रयोग किया बल्कि ये दर्शा दिया कि जिस शैली के वो बल्लेबाजी उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करना जानते। 168 पे 5, 40 पे नाबाद, 18 गेंदों से एक बार फिर पवार की गेंद और फिर लेकिन इस बार विकेट कीपर है नीचे। जी हाँ, इस बार खेला था ऊपरी सिरे पे लगने के बाद हवा में उछली गेंद, निराश जरूर अपने स्ट्रोक से, लेकिन क्रिकेट का ये एक अंग और इस प्रकार से एक बेहतरीन पारी 40 रनों की खेलने के बाद मात्र 19 गेंदों से 40 रन बनाकर इस समय मोहम्मद अनस वापस पवेलियन लौटते हुए 168 पे 6 विकेट 16.5 के बाद और यह सफलता सूरज पवार को मिलती हुई। अक्षित नए बल्लेबाज आए हैं आदिल मंसूर का स्थान लेने के लिए और इस समय ड्रेसिंग रूम में सभी उनके साथी, उनके जो क्रिकेटर वहां पर हैं, उन्होंने उनका अभिवादन किया कि जिस प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने आज की जिससे कैप जयपुर की टीम 168 पे पहुंच चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। मात्र 19 गेंदों से उन्होंने ये 40 रनों का योगदान दिया। बहुत ही बेहतरीन पारी 16.5 168 पे 6 और आखिरी गेंद सबब 23 ओवर की 2 नंबर की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज अक्षित आए हैं। आदिल मंसूर 1 गेंद से 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे हैं। सूरज पवार इस ओवर में आखिरी बार 2.5 33 2 विकेट के नुकसान पर 2 सफलता उनके नाम। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षित के लिए इस बार बढ़िया गेंद, हालांकि लेग स्टंप की ओर थोड़ा सा सरक रहे थे और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, रन लेना चाहते थे, गेंद को वहां पे फील्ड किया गया कवर्स द्वारा बगैर किसी रन के। ओवर पूरा 17 ओवर की समाप्ति 168 6 विकेट के नुकसान पर। अक्षित 0 1 गेंद से, आदिल मंसूर 1 गेंद से। कमेंट्री के लिए मैं तनवीर। Over. 168 for the loss of 6 wickets. Cap Jaipur after 16 overs. Not easy it's a hectic job for the commentators too, but we'll definitely love to carry on with the same pace. Okay. With 4 hours to go or 3 hours to go. इधर भी ले। ओए, हाँ, नज़ीर, और कितने? लेने वाला। 18 ओवर का खेल है। ओवर कितने हुए?
It's over number 18 and Arsalan to continue. Admire this boy from ball 1, and he's gonna bowl down the leg side. Starts with a wide. It's a big wide. Need to be very disciplined with the ball and need to hit the right areas, right spot on the track, which is quite benign track, full of runs, batter's paradise. It's a belter of a wicket. It's full of runs. You just need to got to admire each and every ball, and you just need to wear the bat right behind the ball and then turn for the shot, and I believe that 4 or 6 will be written all over each and every ball. Oh, what a shot, gorgeous. My goodness, flick, and there is a chance of a run out, but a Vibhu Troy comes in allowing the batters to complete the second one. Score moves on to 160, 170 for the loss of 6 wickets in over number 18. Cap now have 171 on the board against Cap Pune. Cap Jaipur has enough on the board, but we'll have to wait and watch. He goes. Oh, that's a good shot up the outside edge. He was trying to draw at it, but the ball finds the outside edge and goes down towards the third man. One more run added. 172 in over number 18. While the ball is down, and umpire Advocate Hilal is going to inspect the place, and he will himself find whether the ball is positioned in balance or not. And now it looks like he's okay with that. He feels it is. They were able to adjust, and Arslan continues to bowl. A Pune boy, a mere boy of 14 years old, is operating. Goes again. Oh, that's a good shot. That's a punch of the back foot, but a gentle punch. Not trying to hit hard, just playing into the gap and maneuvering that gap, milking the bowlers. And with that run, score moves on to 175. In over number 18, bright sunshine it is, breeze on its way, but you know that each and every commentator needs to remain hydrated and need to take in that glucose water and other things to keep things in balance. He goes. Oh, that's a good shot. That is a slash. Will this be a chase? No, Dawson, it finds the fence again. 179, but that was a audacious one. Inside out and up the turf down to the boundary. A big chase. It was unable to flick it back into the play. It eludes and evades him down to the boundary. Ball wins the race. Fielder loses the race. It's a boundary to take the score to 179. Gulshan, the captain of the side, wearing jersey number 18, is having a word with Arsalan. Was put on jersey number 11. Captain is giving them a pep talk. He goes. Oh, that's a good delivery. That's a Yorker length delivery. Directed. Would have been a tight call. Would have been a close call, but it wasn't a directed. It bounced. Blessing in disguise for the fielding side. But look at the look at the right-hander batter. Is still trying to display that, and is replicating what he did, and is shadow practicing that shot, and how he was able to dig it out towards the back with a point for no round for a single, and that was needless conceded away by the fielding side. He goes again, and a batter again comes down the track and trying to hit hard down towards the long on, but the ball goes out towards the long on. One more run. And Anas and a few of the bowlers, they are using different kind of shoes and full of they are put on shoes and with spikes available, and these spiky shoes can create a kind of a problem in the track, and it can really distract the track, and it can make things bad and worse, and pitch can break down, and once it will start breaking down in the second innings, spinners will simply come into play, and they can really turn the ball, and they can really try to hit those rough patches. That will be the result of the spiky shoes, and that is a big problem in the second innings when a bowler tends to hit those patches, and it can turn, and it can create everything, and it can really annoy and irritate the batters, and even at the international arena they won't love to play
the balls that come off the crack. And if you remember, a few days back, India playing against Bangladesh, they were in Mirpur, and that track was full of cracks, and that was full of those patches. And whenever the ball tends to hit, whenever the ball was pitched on those patch areas, and whenever the ball kissed the patch, those rough patch areas, and it wasn't easy. And that's a huge hit. That is a humongous flaw, and that goes all the way for 6. It is a biggie, to be precise. It's the biggest of the lot, 185 for 6 in over number 19. A bad ploy overpitched and belted for 6 onto the bank. That's another good delivery, but he manages to work it onto the onside. Call is for 2. Call is for 2. Oh, look at this man. Look at this man. Quite bizarre. Quite bizarre. Is he a goner? No, he says not out, but look at this man. It's a misunderstanding. Yes, no, yes, no. And here his soul is pounded down the river, but nonetheless, in the end, deciding to make it 187 for 6. Well, you never know. I was talking about those rough patches, and using the spiky shoes, those spikes which are under the shoelace there. And whenever you land your foot on the track, and pitch starts breaking down, and there's certain patches available to the naked eye. Whenever the ball is pitched on, or whenever the ball pitches in those rough patches, and it can turn, it can swing, and it can do everything. And so you need to take care of that. And so better is to wear different kind of shoes without those spiky shoes, because those spikes tend to break down the track. 188 for 6. No ball. It is straight coming up. Anmol, oh, what a short slap. No need to run for those, and no one is gonna feel that turn, and it finds the fence for runs. Score was on 192 for 6. But if we look at Pune side, the boys, I think they travelled yesterday, and not in possession to play a cricket match. Their body language tells us a bit down, drooping shoulders. They exhausted while travelling to this spot. I think they travelled by road, which isn't easy from that distant place of Pune. It is South India coming to North India, and playing a match on the very next day isn't easy. Even if we talk of the international cricketers, if they travel by the road, it isn't easy. So they tend to travel by the plans and reach the other place earlier before the fixture. But look at these guys, and drooping shoulder. It's because of they were traveling. I think they travelled by the train yesterday, and today playing a match isn't easy. But still, they try to hosted the match belatedly today. But look at this young fella. He's unable. Oh, that's a good shot. But look at wicketkeeper. He lost the ball, and he whiffed up the bails without the ball in his glove, in his pocket like glove, and the ball ricochets down towards the personal player. But the two batters managed to fetch another brace. 194 for 6. 18.5 done with 7 balls remaining. Cap on course on a podium and on a platform where from they can really push further, and they can swell their lead and their first inning score to 200 and beyond that. सही आ कह रहे हैं आप 194 पे 6 पहुंचा दिया 18.5, और एक बड़े लक्ष्य की और कैप जयपुर की टीम अग्रसर हो रही है, क्योंकि 200 के आसपास आंकड़ा छूने को इस समय तैयारी की सूरत में है टीम कैप जयपुर। बल्ले एकदम से बाहर दिशाहीन गेंद, हालांकि बल्ला चलाया था गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, लेकिन अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा वाइड का इशारा विकेट हिलाल द्वारा, और 1 रन के साथ ही कुल चौक 195। 6 विकेट के नुकसान पर 18.5 के बाद 195, 6 विकेट के नुकसान पर आदिल मंसूर 9 5 गेंदों से, अक्षित 16 9 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार है। एक बार फिर फुल टॉस, और इस बार पहले से भाप लिया ऊंचा लंबा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का इशारा है विकेट हिलाल का, और ऐसे में 200 रन भी पूरे होते हुए टीम कैप जयपुर के कैप पुणे के विरुद्ध 201 19 ओवर पूरे 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का आरंभ की, और एक बड़ा विशाल लक्ष्य अब तक स्कोरबोर्ड पे लग चुका है, और इन परिस्थितियों में देखना होगा कि अब आखिरी ओवर में कितने रन बटोरेंगे, क्योंकि एक बड़ा विशाल लक्ष्य अब तक सजा दिया है कैप जयपुर की टीम ने कैप पुणे के विरुद्ध 201 6 विकेट के नुकसान पर। आदिल मंसूर 9 5 गेंदों से, अक्षित 22 10 गेंदों से, और पारी का आखिरी ओवर यानी कि निर्धारित 20 ओवर का कोटा 19 ओवर पूरे हो चुके हैं, और
आखिरी जी हाँ बिल्कुल। और निश्चित तौर पे इतना बड़ा आप सफर करने के बाद जब इतने दूर से महाराष्ट्र, मुंबई से, पुणे से आते हैं तो दूसरे दिन मैच की स्थिति में, हालांकि निश्चित तौर पे काफी मुश्किल होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में अपने आप को मानसिक तौर पे तैयारी की हालत में रहना होगा और तैयार रहना होगा, क्योंकि आप एक मुकाबला खेल रहे हैं विपक्षी टीम के विरुद्ध। 201 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, 19 ओवर पूरे हो चुके हैं और एक बार फिर यश को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। यश गुज्जर अब तक का 3 ओवर में मात्र 7 रन दिए हैं और उन्हें कोई विकेट नहीं अब तक उनके खाते में कोई विकेट नहीं गई है। उनका एंड चेंज किया गया है और उनका छोड़ बदलने के बाद इस शॉट से पहली गेंद पर स्वागत किया, वहां पर मिसफील्ड का नतीजा, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही आदिल मंसूर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, खूबसूरत स्ट्रोक और बेहतरीन प्लेसमेंट। हालांकि वहां पर प्रयास जरूर किया था क्षेत्ररक्षण ने, उनके हाथ पे गेंद लगने के बाद छिटकी और निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 205 6 विकेट के नुकसान पर 19.1 और इसमें 10.70 प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और ये कहना होगा कि आप समझ सकते हैं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है आज। शुरुआती क्षण में जब झटका लगा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद इस बड़े लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल और कब अनिश्चितताएं घटेगी ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप पर जगह मिली, फिर अंतिम समय में दिशा दे दी, उसी दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका आदिल मंसूर के बल्ले से, 7 गेंदों से 17 रन। उनका बल्ला आग उगलता हुआ आखिरी ओवर प्रगति पर 19.2 209 पे 6 कैप जयपुर का स्कोर कैप पुणे के विरुद्ध। बालाजी क्रिकेट एकेडमी का खूबसूरत मैदान, खूबसूरत वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल, अच्छी खासी धूप और ऐसे में दो टीमों के बीच समय भिड़ंत होती हुई एडवोकेट हिलाल और जहांगीर जॉन जो आज इस मुकाबले का नेतृत्व कर रहे हैं जहां तक का अंपायरिंग का सवाल है। और यश अपने कोटे का आखिरी ओवर यानी कि चौथा ओवर फेंक रहे हैं और कुल मिलाकर पारी का भी आखिरी ओवर इस छोर से यानी कि कमेंटेटर मंच से वे गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 8 रन खर्चे हैं और इस बार फिर पहले से ऑफ स्टंप की शेद में सरक करके गेंद को निकाला, कोई मौका नहीं, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर। तीसरा चौका इस ओवर में, 3 गेंदों से 3 चौके। और क्या कहना यहाँ पर बल्लेबाज आदिल मंसूर का, 21 पेना बाद मात्र 8 गेंदों से 213 6 विकेट के नुकसान पर कैप जयपुर के पुणे के विरुद्ध बालाजी क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड जयपुर सजा हुआ इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। और ऐसे में कैप जयपुर के बल्लेबाज लगातार धाकड़ता बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है, जिस धाकड़ता के साथ आदिल मंसूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आखिरी ओवर है और ऐसे तैसे करके जितने रन बटोरे जाएंगे उतना अच्छा कहा जा सकता है उनके दृष्टिकोण से। 213 पे 6, 21 8 गेंदों से आदिल मंसूर सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर यश का 3.3 ओवर 19 रन दे चुके हैं। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गति में परिवर्तन, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर। हालांकि ऐसे थी 1 रन पूरा कर रहे हैं, थ्रो किया वहां पर, हालांकि उनके बल्ले पे जा टकराया, 1 रन जरूर वहां पे एक अवसर बना था रनआउट का, लेकिन ऐसे तैसे करके 1 रन बटोर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और कैप जयपुर 214 पे पहुंच चुके हैं। 6 विकेट के नुकसान पर 19.4, 3 गेंदों से 3 चौके और उसके बाद एक बाई के रूप में, तो कुल मिलाकर 13 रन अब तक 4 गेंदों से खर्चे हैं इस आखिरी ओवर में। 5वीं गेंद लेकर के तैयार यश चले, लेकिन इस बार सामने अक्षत के लिए कदमों का इस्तेमाल है, स्टंप पर आती हुई गेंद को निकाला ऑन साइड में, उस और खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से पर्याप्त समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को संभवतः 2 रन बटोरने का। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 216 पे पहुंचा दिया। 6 विकेट के नुकसान पर कैप जयपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कैप पुणे के विरुद्ध। अरे क्या लाजवाब आकर्षक बल्लेबाजी आज देखने को मिली है, शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन और जिसके चलते एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर टीम कैप जयपुर की। 216 पे 7, पहली बारी, आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चलाया, सफलता मिली नहीं और डॉट गेंद के साथ इस समय पारी समाप्त। 20 ओवर की समाप्ति के बाद कैप जयपुर ने कैप पुणे के बाद 216 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। यह जानकारी देते हुए कि 217 रन बनाने हैं कैप पुणे को इस मुकाबले को जीतने के लिए। जैसे ही दूसरी पारी शुरू होगी हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे, तब तक मैं शेख नजीर हिंदी कमेंटेटर, साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ वापस कैप स्टूडियो लिए चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।